things also, and if you have any doubt, we can have open sessions, open discussion in between also. Okay. So, yesterday what we have discussed is the regarding the new public administration. These are the questions that we have tried to understand. What do why do we refer new public administration as a first reinvention of government? What was new in the new public administration? What were the new factors? That is the goals, anti-goals, and 4D strategy that was suggested by the platform. Okay, and it was radical. Why it was radical in outlook? That that we have understood why the younger scholars, there was identity crisis and they wanted to bring the change, make the discipline more relevant to the society. Okay, yeah, others can unmute themselves, है ना, so that we don't get disturbed. तो फैब्रिक ऑफ एनपीए है ना, इज नॉट न्यू, तो इसका क्रिटिसिज्म भी हमने देखा कि भाई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके कई सारे कंट्रीब्यूशंस थे, लेकिन इन जनरल जो इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट किया दैट वाज वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी ओनली. So again, that was problematic. Okay, and then it has brought public administration closer to the society. So how it has brought? Because it has made the public administration more relevant to the society. That was the aspiration of the platform. ठीक है. उसके बाद आप देखेंगे कि these are the reiteration of the values that the traditional public administration also had. So what we see, all these factors, all these spirit, that is the spirit of publicness, है ना. Normally we say the publicness will be, publicness of the public administration will be reiterated by all these platforms. Okay, so you'll look at the different conferences that are going to be organized in the interval of 20 years. जैसे 68 में हुआ, फिर 88 में होगा, फिर 2008 में, और 2028 में आने वाला है. All of you also can prepare for the fourth conference. You can also become part of that. Okay, so that is a possibility. Some of you can become an officer or go for higher study, and you can participate, or you can be a part of that conferences. Okay, so basically the publicness means the welfare approach या the service orientation जो है public administration का, है ना. तो उसके लिए पब्लिकनेस को रिएटरेट, बार बार पब्लिक स्पिरिट को जो रिएटरेट किया गया, वो इन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू किया गया. तो दैट्स व्हाई द मिनरोव कॉन्फ्रेंस दैट कैरीज द लेगेसी ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नॉर्मली वी से, जो अब क्वेश्चन में क्या आता है, ये जो पहला कॉन्फ्रेंस है, दैट वी रिफर इट एज ए न्यू पब्लिक, दैट प्लेटफॉर्म गिव द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट दोज लेगेसी ऑफ पब्लिकनेस और पब्लिक स्पिरिट, वेलफेयर ओरिएंटेशन, है ना, दैट वाज कैरीड फॉरवर्ड इन द कंसिक्वेंट कॉन्फ्रेंसेस. ठीक है. तो ये मतलब हम ये इसलिए जब भी लिखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि एनपीए, कई बार ना कई लोग लिख देते हैं एनपीए 1, एनपीए 2, that is the wrong representation, that is not the appropriate one. So whenever we say कि NPA जब है, NPA as a contribution has come in 1960s only, and that legacy was carried forward by the consequent conferences. Okay, that is the idea. एक तो वो क्लियर होना जरूरी है. कई बार क्वेश्चंस आंसर्स में मैंने देखा कि कई लोग ना NPA 1, NPA 2, तो there are basic fundamental mistakes that normally some of aspirants do, and that creates wrong impression in the eyes of evaluator, है ना. यूपीएससी में अगर गलत लिख दिया तो गलत हो जाएगा. तो ये सेकंड कॉन्फ्रेंस होता है. अब व्हाट वी हैव सीन, जो 1950s का जो दौर था, है ना, 1950s में हमने क्या देखा, वेलफेयर स्टेट का दौर है. वेलफेयर स्टेट मतलब लार्जर स्टेट, बिग स्टेट, है ना. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज. तो अब इसमें वेलफेयर स्टेट के फेज में क्या देख रहे हैं कि देयर वाज स्टेट फेलियर, स्टेट हैज फेल्ड, है ना. देयर वाज फिस्कल क्राइसिस, पैसे है नहीं, हमने प्रॉमिस कर दिया पॉलिटिकल पार्टी की तरह, हम पूरा गरीबी दूर कर देंगे, शिक्षा रिवॉल्यूशनाइज कर देंगे, सबको नौकरी दे देंगे, लेकिन बट स्टेट हैज लिमिटेड कैपेसिटी. So it failed, it failed, and by 1960s and 70s only we see there were a lot of resentment against the state. Welfare state के against भी बहुत सारे resentment हो गए. तो welfare state was a failure, legitimacy crisis आ गया, social contract was questioned, people started questioning the capability of state के capability को question करने लगा. तो then whatever the suggestion that was given by new public administration, एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बहुत अच्छी बातें की कि स्टेट को गोल ओरिएंटेड, चेंज ओरिएंटेड, रेलेवेंट होना चाहिए सोसाइटी का. 4D स्ट्रेटजी जो सजेस्ट किया गया कि डेमोक्रेटाइजेशन करो, डेलीगेशन होना चाहिए, डिवोल्यूशन होना चाहिए, और डीब्यूरोक्रेटाइजेशन होना चाहिए. लेकिन जो डीब्यूरोक्रेटाइजेशन करना है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, सॉल्यूशन क्या है, मींस क्या है. तो जो गोल्स तो बहुत बढ़िया दे दिया है ना, ऑब्जेक्टिव्स भी रिएटरेट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम हुई इसके पास जो मींस सजेस्ट किया गया, मींस वेर नॉट सजेस्टेड बाय द दिस प्लेटफॉर्म.
तो एज ए रिजल्ट वी सी दैट देयर इज ए पैरेलल डेवलपमेंट, एनपीए के पैरेलल हम लोग देखते हैं 1960s में ही, बाद में अभी जस्ट टुडे ओनली विल सी पब्लिक चॉइस अप्रोच आएगा, फिर एलपीजी का है, एलपीजी फिर उसके बाद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, लेटर ऑल दिस तो दे विल प्रोवाइड द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। तो 1960s और 70s का जो दौर था, 70s और 80s में हम तो यूके और यूएसए के अंदर देखते हैं कि रिफॉर्म इनिशिएटिव लिया गया। यूएसए के अंदर क्या, रीगन प्रेसिडेंट रीगन था तो रीगनिज्म आ जाता है। यूके के अंदर बोलते हैं उसको थैचरिज्म, दैट इज रिफरिंग टू द वेरियस सेट ऑफ रिफॉर्म मेजर्स, है ना। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होना चाहिए, स्टेट को मिनिमम करना है, रोल को विड्रॉ करना चाहिए और मार्केट को कॉन्ट्रैक्ट आउट, पीएसयू का जो डोमिनेंस था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो मोनोपोली था, उसको खत्म करना है। तो दैट इन दैट कॉन्टेक्स्ट नाउ दैट व्हाई आई एम टेलिंग दैट, बिकॉज वी आर गोइंग टू इंटर इनटू द 1980s, है ना। 1980s का जो दौर है तो दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 1960s का जो फेज है ना। तो हम लोग देखते हैं 1960s में पहला कॉन्फ्रेंस होगा और है ना 68 में हुआ, फिर 1988 में होता है सेकंड कॉन्फ्रेंस। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट क्या डिफर कर गया, 1968 का जो कॉन्टेक्स्ट था दैट वाज द एरा ऑफ वेलफेयर स्टेट, स्टेट वाज मोर एंड मोर डोमिनेंट। वेलफेयर एरा में क्या, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू काम कर रहा है। लेकिन 1980s आते आते हमने देखा प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म आ गया, है ना, स्टेट कॉन्ट्रैक्ट आउट करने लगा, प्राइवेटाइजेशन होने लगा। तो इससे एक जो कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ, दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। फिर 60s में हम और एक डिफरेंस क्या देख रहे थे कि देयर वाज आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस होने से क्या रहेगा कि जितने भी स्कॉलर्स थे दे वांटेड टू रीइटरेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कैपेबल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आइडेंटिटी क्राइसिस को दूर करने के लिए, है ना, कई सारे स्कॉलर्स ने कई सारे ओपिनियन दिए थे। बाय 1970 वी हैड ए सेपरेट डिसिप्लिन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। 80s 70s का जो रीगनिज्म और थेचरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बैकग्राउंड, ये कॉन्टेक्स्ट सेट करता है 1988 का। तो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार तो स्टेट फेल कर गया, स्टेट फेल कर गया, लेजिटिमेसी क्राइसिस, फिस्कल क्राइसिस आ गया। अब जब मार्केट का डोमिनेंस आ जाता है तो, है ना, 80s में क्या, है ना, जो कॉन्फ्रेंस है, कैन इट नेग्लेक्ट द रोल ऑफ मार्केट, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मार्केट इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग बेटर, दे वर प्रोवाइडिंग गुड्स क्वालिटी, है ना, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि, लेकिन क्या है कि जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में हमने जो देखा पब्लिकनेस या वेलफेयर ओरिएंटेशन, गोल, है ना, सर्विस मोटिव, इक्विटी, कंसर्न, एथिक्स, ये सब तो खत्म नहीं कर सकते। तो अब वो कंट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस होता है विद सम कैरिंग द लेगेसी। तो यानी सेकंड कॉन्फ्रेंस 88 में वो किसके लीडरशिप के अंदर आता है, तो जॉर्ज फेड्रिक्सन आता है, ठीक है। तो ये अपने को एक पॉइंट जस्ट इंट्रोडक्शन में यूज करना है, जब भी सेकंड कॉन्फ्रेंस का बात होता है या कंपैरिजन होता है तो यू कैन ब्रिंग आउट दैट, है ना, जॉर्ज फेड्रिक्सन। उसके बाद क्या होता है कि अलग अलग इन्वायरमेंट, डिफरेंट इन्वायरमेंट क्यों हुआ, क्योंकि 60s आते आते ही स्टेट फेल होने लगा था। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अल्टरनेटिव सजेस्ट किया, अगेन दैट वाज ए फेलियर, है ना। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एलपीजी ग्लोबलाइजेशन का भी दौर आ गया, प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म आने लगे। तो ये है कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को कंटिन्यू किया, लेकिन क्योंकि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में क्या था, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, है ना, डेमोक्रेटाइजेशन या एथिक्स, इक्विटी, ये सब कंसर्न्स था, उसको कंटिन्यू किया, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस क्या होगा, एक तो है कि इस जो स्कॉलर्स पार्टिसिपेट किए, यहाँ पे क्या देखे, यंग स्कॉलर्स थे, एमबीसीएस, ओवर एमबीसीएस। और जो सेकंड कॉन्फ्रेंस होता है वहां पे क्या, दे वेर मोर प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक थे, क्योंकि जो सोसाइटी में जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो चेंज हुआ उसको भी इनकॉर्पोरेट करने लगे वो लोग, ठीक है। उसके यहाँ पे क्या देख रहे, बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव है, दे हैव रिजेक्टेड एवरीथिंग, है ना। विल्सन से लेकर साइमन तक का जितना भी डेवलपमेंट था ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दे रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट। सब बोला कि इंपेरिसिज्म हटा दो, है ना, नॉर्मेटिज्म ले आएंगे। अब उसके बाद उसके कारण कई सारे थ्योरेटिकल डेवलपमेंट में वैक्यूम भी क्रिएट हो गया। तो बट द सेकंड कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसमें देखते हैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, है ना, द स्कॉलर्स वर ब्रॉडर इन पर्सपेक्टिव, क्योंकि, है ना, उस समय के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी उसने इनकॉर्पोरेट किया, टेसिट एक्सेप्टेंस भी था मार्केट का। फिर थिंकर्स यहाँ पे क्या, मोस्टली पॉलिटिकल साइंस वाले लोग थे। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिन हो गया था ऑलरेडी, इकोनॉमिक्स से, लॉ से, सोशोलॉजी से, ये, है ना। तो उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पे 5 गोल में आर्टिकुलेट किया, न्यूनेस यहाँ पे आता है, 5 गोल और 3 एंटी गोल जो देता है, दैट इज द न्यूनेस। लेकिन सेकेंड कॉन्फ्रेंस का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट, है ना, नथिंग मच टू रिमेम्बर। तो कंट्रीब्यूशन के टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा, है ना, मोर रेडिकल है पहला कॉन्फ्रेंस,
ठीक है। उसके बाद हम देन इट कंटिन्यूड द लेगेसी, मोरल ओवरटोन है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, इक्विटी कंसर्न है, दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड, है ना। फर्स्ट में था, इसमें लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांजिटरी है, क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेट भी आ रहा है और इधर मार्केट भी आ रहा है ना, दोनों के रोल को, है ना, टेस्ट मतलब एक्सेप्टेंस हो रहा है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा तो, है ना, ऑटोमेटिकली द कॉन्ट्रीब्यूशंस भी चेंज होंगे। तो दैट इज द, कंपैरिजन। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि सिमिलैरिटी होगा। क्या सिमिलैरिटी है? लेगेसी कंटिन्यू किया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कंटिन्यू किया। डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी था, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करता है। और सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड क्या चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट है, मार्केट, स्टेट तो फेल हो चुका है, तो यहाँ पे मार्केटाइजेशन, एलपीजी का दौर आ गया, बिजनेस मैनेजमेंट का दौर आ गया, पब्लिक चॉइस अप्रोच भी 1960 से ही हम लोग देखते हैं पब्लिक चॉइस भी पैरेलल डेवलपमेंट शुरू हो गया था, है ना। तो दैट रिएटेड चॉइस मैक्सिमाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट हो गया, ठीक है। लेकिन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जो बताया गया है ना सेकेंड कॉन्फ्रेंस का, क्या क्या है, जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, डिस्कस भी किया, तो ब्रीफली, है ना, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैग्मेटिक था, रिसेप्टिव था, ओपन टू अदर कंट्रीब्यूशन। अब पहले वाले कॉन्फ्रेंस में मोस्टली पॉलिटिकल साइंस के थिंकर थे और वेस्टर्न थिंकर थे, है ना, यूएसए के थिंकर थे। बाद में धीरे धीरे करके दूसरे कंट्रीब्यूटर्स भी आने लगे, अलग अलग डिसिप्लिन भी पार्टिसिपेट करने लगा, है ना। तो एंटी बिहेवियरल पहले वाले जो जितने भी थे, है ना, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, विंडो कॉन्फ्रेंस वन में देख रहे हैं कि सब लोग क्या के रेडिकल थे, दी रिजेक्टेड नॉर्मेटिव, है ना, इंपेरिकल अप्रोच या पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, बिहेवियरल, इसलिए एंटी बिहेवियरल या एंटी पॉजिटिविज्म बोलते हैं, है ना। तो उसको, है ना, पहले में तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सेकेंड कॉन्फ्रेंस में क्या दिख रहे हैं, दे वर लेस एंटी बिहेवियरल, यानी वो रिसेप्टिव थे, ठीक है, देयर शुड बी मिक्स ऑफ टू, बिहेवियरल स्कूल्स को भी एक्सेप्ट किया और नॉर्मेटिव स्कूल्स को भी एक्सेप्ट करता है। ओके, बिहेवियरल इज लाइक द पॉजिटिविज्म या इंपेरिकल स्टडी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो नए एजेंडा क्या क्या है डिबेट डिस्कशन में, नए कुछ फैक्टर्स आगे तुम्हारे, यानी लीडरशिप इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि रीगन और थेचर ने क्या प्रूव किया कि लीडरशिप का रोल बहुत ही क्रूशियल हो जाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, इन द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, या जो सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है। तो लीडरशिप इंपॉर्टेंट हो गया। इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस हम देख रहे हैं, जीएस में भी पढ़ते हैं, है ना, क्लाइमेट मीटिंग शुरू हो गया, तो इसलिए इन्वायरमेंट कंसर्न हो गया। तो अब जेंडर फोकस भी, क्योंकि एंटी डेवलपमेंट थेसिस भी तो 80s के टाइम ही आया था, है ना, 1980s और 90s में ही हम लोग देखते हैं कि एंटी डेवलपमेंट थेसिस आ गया, है ना। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जब टॉपिक पढ़ते हैं उसमें भी देखते हैं एंटी डेवलपमेंट थेसिस में क्या होता है कि जेंडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंसर्न होना चाहिए। तो अगेन सी हाउ द थिंग्स आर इंटरलिंक, दिस इज द इंटरलिंकेजेस, दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द, यूपीएससी एक्सपेक्ट, कि भाई आप जो उस समय का जो कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट है, चाहे कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो दे आर अगेन, दे आर इन दिस बैकग्राउंड, है ना। उसके कॉन्टेक्स्ट में सेकंड कॉन्फ्रेंस हुआ है, नए एजेंडा क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन आएगा, देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टली आस्क्ड ऑन द कॉन्फ्रेंसेस आल्सो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद और भी क्या हुआ कि इसमें डिस्टिंक्टिव वही है कि तुम, है ना, एक तो जो भी डिसिप्लिन का एस्पेक्ट है वो तो चल ही रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसमें ना रेडिकल, दे वर नॉट रेडिकल, मतलब उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है ना, टेसिट एक्सेप्टेंस और मॉडरेट टाइप। जैसे आजादी की लड़ाई में क्या था, एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स थे, है ना, यू कैन रिलेट इट। मॉडरेट क्या बोलेगा, चलो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से लड़ेंगे, ये करेंगे। लेकिन जो रेडिकल्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, दे वांटेड टू कंप्लीटली, है ना, ओवरथ्रो द ब्रिटिशर्स। तो पहले कॉन्फ्रेंस में, है ना, बहुत ही रेडिकल था, इम्पैक्टफुल था, यूथफुल पॉपुलेशन था। सेकेंड वाज नॉट एज इम्पैक्टफुल एज द फर्स्ट वन, है ना, इसलिए इसको सेकेंड कॉन्फ्रेंस को हम लोग न्यू री इन्वेंशन नहीं बोलते हैं, है ना। कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी नहीं रहा डिसिप्लिन पर, क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट किसका था, एलपीजी का था, प्राइवेटाइजेशन का था, मार्केट का था। तो स्टेट का तो ऑलरेडी अंडरमाइन हो गया, स्टेट को ऑलरेडी बोल रहा है आप लोग जो है, आप जो सारा काम प्राइवेटाइज कर दो, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दो। तो मार्केट जब वहां पे मार्केट का डोमिनेंस आ गया, तो स्टेट ऑलरेडी, है ना, फेवरेबल नहीं था। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ये सब बातें तो हवा हवाई बातें टाइप होने लगी, इसलिए सेकेंड कॉन्फ्रेंस का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। दूसरा बस वही है कि कुछ जो कंटेक्स में चेंज हुआ, कंट्रीब्यूटर्स जो थिंकर्स आ गए, नॉन ईस्टर्न थिंकर्स भी आ गए। तीसरा क्या था कि जो इसको जो डिसिप्लिन है, पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर पहले में थे, दूसरे में हम देखते हैं कि नॉन पॉलिटिकल साइंस यानी सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स के भी थिंकर्स आ गए। और नया एजेंडा क्या क्या आ गया, इन्वायरमेंट, जेंडर और ये सारे फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉन्स्टेंट होपफुलनेस बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि सेकेंड कॉन्फ्रेंस इज, और कैरेक्टराइज एज ए, बाय द कांस्टेंट होपफुलनेस। उसका मतलब क्या, एक तो स्टेट को लेके है कि ठीक है, स्टेट शुड प्ले इट्स रोल, है ना, मोरल ओवरटोन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टेंट भी है। क्यों कॉन्स्टेंट, क्या, व्हाट डज कॉन्स्टेंट रिफ्लेक्ट,
इट रिफ्लेक्ट्स द फेलियर ऑफ वेलफेयर स्टेट, है ना, वेलफेयर स्टेट का फेलियर हो गया, तो स्टेट को हम अधिक है ना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमें मार्केट को इनेबल करना है, फैसिलिटेट करना है ना, होप है कि स्टेट विल प्ले द फैसिलिटेटर रोल, इनेबलर रोल, जो आगे भी हम टर्म्स देखेंगे। ठीक है, सेकंड कॉन्फ्रेंस क्लियर। अब चलते हैं थर्ड कॉन्फ्रेंस पे, फिर 20 साल बाद एक मीटिंग और होगी, इसमें ना रोजेनो ओबुलेरिया आता है, फिर फ्यूचर्स, इसका जो थीम था, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है थीम पे आता है, थीम क्या था, तो फ्यूचर ऑफ पबेड क्या होना चाहिए, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फ्यूचर में स्कोप इसको डिफाइन किया इस तरीके से, यानी यू कैन मेक दिस, है ना, टेबल और डायग्राम इन द ट्रेडिशनल पबेड है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक सर्विस के फॉर्म में। फिर कई सारे एजेंडा होगा, है ना, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस टाइम क्या होगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं 1960s में क्या हुआ, बहुत सारा सिविल राइट्स मूवमेंट चलने लगे, वियतनाम में फेलियर हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, स्टेट का फेलियर आ गया, तो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इज गोइंग टू बी रिपीटेड, यू नो, ऐसा ही सिमिलर कॉन्टेक्स्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ यूएसए के अंदर देख रहे हैं कि 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, क्लाइमेट चेंज पे नेगोशिएशंस होने लगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया 2008 में, तो अगेन दिस वाज एरा ऑफ लॉट ऑफ क्राइसिस एंड चैलेंजेस सिमिलर टू 1968, जैसे 1968 में जो क्राइसिस था, अब देख रहे हैं 2008 में भी सिमिलर काइंड ऑफ क्राइसिस आ गया, क्राइसिस आने से क्या हुआ, वहां का जो इन्वायरमेंट उसको रिस्पॉन्ड कौन करेगा, पबेड करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो एजेंडा होगा जैसे पब्लिक मैनेजमेंट का, यानी सब्जेक्ट मैटर डिसिप्लिन को इसने डिफाइन किया कि सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी सीपीए होना चाहिए, और पब्लिक मैनेजमेंट आईसीटी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन भी आ गए, तो दीज आर द एजेंडाज, है ना, कैटेगराइजेशन के लिए ऐसे कीवर्ड्स आप बना सकते हैं ओनली, एंड ताकि आप ना यू कैन समराइज इट ब्रीफली। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट वही है, ग्लोबल क्राइसिस है, इकोनॉमी में भी साइक्लोन आ गया, और है ना, रेगुलेटरी फेलियर भी आ गया, साइक्लोन कैटरीना साइक्लोन था उधर। तो थर्ड कॉन्फ्रेंस जो हेल्थ था 2008 में, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या था, ग्लोबल गवर्नेंस में काफी चैलेंजेस आ रहा था, इन, है ना, इन्वायरमेंट काफी प्रॉब्लमेटिक था, तो दो फेज में मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है, पहले फेज में यंग स्कॉलर्स और बाकी लोग अपने प्रपोजल रखते हैं, सेकेंड में एजेंडा को डिस्कस करते हैं, फ्यूचर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एजेंडा वही है कि थीम को कैरेक्टराइज कर दिया, सर ने ऑलरेडी कैटेगराइज, है ना, फ्लो चार्ट बना के दिखा चुके हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, एक तो डेफिनेशन देगा पहला, है ना, सीपीओ को रिकॉग्नाइज किया कि ये सब फील्ड है, और मेथोडोलॉजिकल प्लुरलिज्म, मतलब कि आप एक ही मीन्स, जैसे हम इंपेरिकल अप्रोच है या बिहेवियरल अप्रोच है ना, इंपेरिकल अप्रोच हो गया और एक नॉर्मेटिव अप्रोच हो गया, तो देयर इज नो वन फिक्स साइज अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देयर शुड बी मल्टीपल मेथड्स टू स्टडी द सब्जेक्ट, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं मेथडोलॉजिकल प्लुरलिज्म, है ना, अलग अलग मेथड्स अप्लाई करेंगे, सोशल एक्शन रिसर्च है ना, अदर मेथड जो अलग अलग डिसिप्लिन में जो डेवलपमेंट उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि पबेट ऑलरेडी मल्टी डिसिप्लिनरी हो चुका है। जब हम कंपैरिजन तीनों का करेंगे तो उसमें सिमिलैरिटी क्या क्या है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू, सिटीजन सेंट्रिसिज्म या पब्लिकनेस है, एक्टिव रोल है पबेट का, प्रोएक्टिव रोल, सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म की बात ये भी अभी भी करेगा, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी में रूटेड है, बिजनेस मैनेजमेंट को अंडरमाइन करता है, और नॉर्मेटिज्म लेके आता है पबेट। तो दीज आर द सिमिलैरिटी, ये इंपॉर्टेंट, अगेन यू कैन रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, और ये अगेन ये दीज आर पॉइंट्स व्हिच यू कैन यूज इन एनी ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस की जो सिमिलैरिटी है, कंपैरिजन आए या फिर इंडिविजुअल भी आता है, स्टिल यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग और क्या देख रहे हैं कि जो पहला और सेकंड, तो बेसिकली वही है कि मोरल ओवरटोन को कंटिन्यू करेगा, अलग अलग कुछ नए पर्सपेक्टिव भी आते हैं, स्पेशली पहले और थर्ड में, वो हमने देख लिया है। उसके बाद होता है कॉन्टेक्स्ट और एजेंडा में, बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, कंट्रीब्यूशंस देखना है, कॉन्टेक्स्ट देखना है, और एजेंडा क्या क्या था, ये तीनों में अपने को डिफरेंस क्लियर कट पता होना चाहिए, ताकि आप ना एग्जाम ऑब्जेक्टिवली आंसर कर पाए। ठीक है, तो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जब हम थर्ड कॉन्फ्रेंस का देखते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं पहली बार नॉन वेस्टर्न थिंकर को अधिक से अधिक नॉन वेस्टर्न थिंकर्स आए, है ना, तो कोरिया जापान और ये सब से बाकी लोग भी पार्टिसिपेट किए। दूसरा क्या है, फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं यही प्लेटफॉर्म जो है ना डिफाइन करने का, जो पहली बार डेफिनेशन जो दिया गया कि वाल्डो, है ना, ड्वाइट वाल्डो क्या बोला कि, है ना, मेंटल पैरालिसिस हो जाएगा अगर आपने पबेट को डिफाइन करने का कोशिश किया, तो ड्वाइट वाल्डो का जो स्टेटमेंट है कि मेंटल पैरालिसिस है, डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, तो again that same platform which once refrained from defining public administration has later defined pubet universal acceptance, यानी सोशली एम्बेडेड प्रोसेस वाला जो डेफिनेशन है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो फ्यूचर स्कोप वही है कि आपको तीनों को, है ना, ट्रेडिशनल पबेट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है वैल्यू एस्पेक्ट को, है ना, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीन्स को, यानी
जो मीन्स हम यूज करेंगे, मीन्स द इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज, जैसे मार्केटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट है। न्यू पब्लिक सर्विस क्या है कि स्टेट कंप्लीटली कैन नॉट रेलिगेट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मार्केट, स्टेट को भी प्रोएक्टिवली रोल प्ले करना पड़ेगा। दैट इज द आइडिया। ठीक है, तो ये फ्यूचर स्कोप यही है ना। आई थिंक ऑल ऑफ यू आल्सो एग्री कि इज इट पॉसिबल, वो कैन वी कॉन्ट्रैक्ट आउट एवरीथिंग टू द मार्केट, है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर सब कुछ मार्केट करने लगे तब तो गरीब लोग, जो इनइक्वालिटी है, वो जो हमने डिस्कस किया, इनइक्वालिटी समाज में ना इतना प्रॉब्लम है, तो स्टेट को तो प्रोएक्टिवली रोल प्ले करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 आया, है ना, इसमें अगर ये जो गरीब कल्याण योजना स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, राशन जो मिल रहा है, नहीं देता तो क्या होता, है ना। सब कुछ मार्केट पे इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं। फ्यूचर स्कोप यहाँ से आपको लिंक करना है। दूसरा क्या है कि मेथोडोलॉजिकल प्लुरलिज्म हमने ऑलरेडी देखा कि भाई आपको ना देयर इज नॉर्मेटिव अप्रोच भी है और एम्पेरिकल अप्रोच भी अडॉप्ट करना है। फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री वही है ना, कहाँ जा रहे हैं। तो वीकनेस क्रिटिसिज्म भी है इसका, कि जो थर्ड कॉन्फ्रेंस था, है ना, जो डिसिप्लिनरी क्वेश्चन था, वेदर पवेट इज ए डिसिप्लिन और नॉट, अगेन दैट हैज नॉट बीन मच क्लेरिफाइड। ये मोहित भट्टाचार्य, हाँ ये यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने बताया कि भाई ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें बाईपास कर दिया सिंपली, कि डिसिप्लिन का स्टेटस है नहीं है, साइंस है नॉन साइंस है या क्या है, आर्ट है या साइंस है, उस पर भी क्लैरिटी नहीं दिया। इट कुड हैव गिवन द क्लैरिटी। तो दिस इज वन, यू कैन यूज द नेम ऑफ मोहित भट्टाचार्य एंड इट हैज, यू नो, कॉन्फ्रेंस हैज एस्केप्ड द डिसिप्लिनरी क्वेश्चन। एक लाइन में आप इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है कि भाई कॉन्फ्रेंस जो ग्लोबल गवर्नेंस चैलेंज में आया था, तो दे शुड हैव टोल्ड कि भाई जितनी भी समस्या है उसको सॉल्व कौन करेगा, पवेट करेगा। यानी गवर्नेंस चैलेंज इन द डार्क टाइम, गवर्नेंस इन द डार्क टाइम में हम लोग नॉर्मली इसको बोलते हैं। तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, पवेट से। तो वहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नेंस को, जो डिसिप्लिनरी क्वेश्चन उसको भी डील नहीं किया, और जो सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड कर सकता था उसके बारे में भी ज्यादा कमेंट नहीं किया, कि जितने भी गवर्नेंस चैलेंज है उसको हम लोग कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ पवेट क्या हो रहा है कि गवर्नेंस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो डिसिप्लिन है ना, किस प्रकार से पवेट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व कर सकता है, दैट इज द आइडिया। तो थर्ड कॉन्फ्रेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन दिया, स्कोप भी डिफाइन किया, मेथड में मेथोडोलॉजिकल प्लुरलिज्म हो गया, और एजेंडा भी पवेट का डिफाइन कर दिया कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है सोसाइटी की, दैट वी हैव टू रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ पवेट, है ना। बाकी कुछ और क्वेश्चंस में ना टर्म यूज किए जाते हैं, वाल्डोनियन और सैमनस की। तो वाल्डोनियन क्या है, वाल्डो रिप्रेजेंट करता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज द वैल्यू एस्पेक्ट, पब्लिकनेस, है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये तो वाल्डोनियन हो गया। और साइमन मतलब यहाँ पे फैक्ट, एफिशिएंसी, है ना, डिसीजन मेकिंग, बिजनेस मैनेजमेंट अप्रोच। तो ये अमेलगमेशन है, मतलब जो मेथोडोलॉजिकल प्लुरलिज्म बोलते हैं, अप्रोच में भी डिफरेंसेस है, एक्सेप्ट, है ना, कि मल्टीपल अप्रोच कैन बी अडॉप्टेड, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। पहले कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, इसने वाल्डो ने क्या किया, साइमन को रिजेक्ट, है ना, ट्रेडिशनल जितने भी ट्रेडिशनल पवेट के थिंकर्स थे उसको रिजेक्ट करता है। लेकिन सेकेंड और थर्ड में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस है, किसका भी, वाल्डो का भी, जो पब्लिक पॉलिसी है, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या नॉर्मेटिव अप्रोच है, वैल्यू एस्पेक्ट है, और साइमन का जो इंपेरिकल है उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब फोर्थ जो कॉन्फ्रेंस है, वेर यू ऑल ऑफ यू, है ना, कैन एस्पायर टू पार्टिसिपेट, अब वो क्या होगा, मोर ग्लोबलिज्म होगा। आज का ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है ना। तो अभी क्या है कि G20 का रेलेवेंस बढ़ गया इंस्टीड ऑफ G7। पहले G7 डोमिनेट करता था, अब G20 अभी रिसेंटली इंडिया ने कंडक्ट किया। फिर वेस्टर्न कंट्री, अब क्या ना, इंडिया से भी कई सारे मॉडल, मान लो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का मॉडल है, कहाँ से निकल के आया, बांग्लादेश से। या फिर जो ग्रामीण बैंक वाला मॉडल है, कैसे, है ना, वो नाउ द सॉल्यूशंस आर नॉट कमिंग ओनली फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री, बट नॉन वेस्टर्न कंट्रीज आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द सॉल्यूशंस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्री का भी एकेडमिक डेवलपमेंट, अब देख रहे हैं यहाँ पे भी कई सारे नॉन वेस्टर्न कंट्री में, कोरिया में है, एशिया पैसिफिक जनरल है, इंडिया में भी IIPA जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। कई सारे कॉलेज, जामिया है या इग्नू है या लखनऊ यूनिवर्सिटी, कई सारे कॉलेज में भी पवेट को पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग फोर्थ कॉन्फ्रेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि एकेडमिक डेवलपमेंट अभी भी है ना, वो लैकिंग है, जो हमने देखी चुका है, स्टडी वी हैव सीन हाउ इट इज लैकिंग इन वेरियस पैरामीटर्स। ठीक है, तो अब ये लेस एथनोसेंट्रिक, जब भी क्वेश्चन आएगा लेस एथनोसेंट्रिक मतलब वेस्टर्न फिलोसफर्स अब कम हो गए, नॉन वेस्टर्न फिलोसफर भी अब पार्टिसिपेट करने लगे। अब फोकस सिर्फ अमेरिकन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। एजेंडा क्या सिर्फ अमेरिकन एजेंडा ऑफ गवर्नेंस तो है नहीं, अब तो ग्लोबल एजेंडा भी आ गया। इसलिए पवेट क्या है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। दैट इज द लेगेसी ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हमने अलग अलग फेज में देखा। तो हमें यही ध्यान रखना, हाँ ध्यान ये रखना है कि कॉन्टेक्स्ट, तीनों का कॉन्टेक्स्ट क्या था, कंटेंट क्या था तीनों का,
और उसका कंट्रीब्यूशन यानी उसका रेलेवेंस क्या रहा, ठीक है, और कंपैरिजन। या एनीथिंग टू आस्क बिफोर वी प्रोसीड? यस सर। ठीक है, हाँ हाँ प्लीज आस्क। सर जो मिनोब्रुक थर्ड कॉन्फ्रेंस है उसने स्कोप क्या डिफाइन किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप में? देखो, पबेट का क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा, सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। जो भी गवर्नेंस इन डार्क के टाइम्स हम लोग पढ़ते हैं ना, गवर्नेंस इन डार्क, तो जो भी चैलेंजेस है, इसमें ये बोला कि नो अदर डिसिप्लिन डील्स विद द गवर्नेंस चैलेंज एक्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होगा, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, उसके जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही सोसाइटी में उसको सॉल्व करना, दैट इज द स्कोप। वही सर स्टे। जैसे हाँ हाँ अगर बताओ। स्कोप पे क्वेश्चन आ जाएगा तो बिल्कुल इसको उसको रिलेट करना है, वेरी गुड, यू कैन रिलेट। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है ना, दिस इज हाउ यू आर इंटरलिंकिंग विद द अर्लियर टॉपिक, कि मीनिंग स्कोप सिग्निफिकेंस जो अपन ऊपर पढ़े थे, इस स्कोप को वहां से भी रिलेट करना है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके, कैन वी प्रोसीड नाउ? यस सर। ओके ओके, एनी अदर डाउट? चलो ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, 10-15 मिनट में फिर ब्रेक लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बिल्ड करते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच का। देखो अब क्या, 1950s का जो दौर था, 60s का जो दौर था, वहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वेलफेयर एरा। अगेन देखो, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, तो इसलिए क्या है ना, कहानी एक बार क्लियर हो गया ना, तो यू कैन रिलेट ऑल द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, है ना, आसानी से उसको लिंक करना आसान होता है। क्यों? कि जो बैकग्राउंड हमको अगर पता है तो क्यों डेवलपमेंट हो रहा है, वाई पब्लिक चॉइस अप्रोच, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कितने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन थे, अलग अलग स्कूल क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, फिर इसमें कुछ कमियां होगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मॉडल डेवलप हो रहा है उसका क्रिटिसिज्म ना हो, देयर मस्ट बी सम क्रिटिसिज्म। उसके बाद इसका रेलेवेंस होगा ही, और कंक्लूड करेंगे, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। ठीक है, तो अब ये आया कि जो मैक्सिमाइज करने का, पब्लिक चॉइस को मैक्सिमाइज करना है। पब्लिक चॉइस मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रेडिशनल पवेट क्या बोलता था, कि आप वेलफेयर स्टेट लेके आओ, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या ब्यूरोक्रेसी लेड अप्रोच होना चाहिए, स्टेट लेड मॉडल होना चाहिए। अब उससे क्या सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। जो 1950-60 में इंडिया में भी यही था, कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सब कुछ गाड़ी बना रहा है। अभी मान लो दिवाली है ना, दिवाली के टाइम हम लोग क्या है ना, अमेजन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, तो कितने सारे ऑप्शन है। जस्ट इमेजिन कि अमेजन फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं और सिर्फ गवर्नमेंट का आइटम मिल रहा है, यानी पीएसयू के सारे, है ना, प्रोडक्ट सिर्फ मिल रहे हैं, है ना। देयर इज ओनली वन टूथपेस्ट, ओनली वन कार, ओनली वन मोबाइल। तो है ना, तो लोग क्या फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि देयर इज नो ऑप्शन फॉर द सिटीजन। तो उससे क्या होगा, अगर ऑप्शन नहीं है तो क्या, लोग एम्पावर है नहीं, जो भी मिल रहा है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट वाज द अर्लियर कंसेप्ट, कि हम स्टेट सब कुछ करेगा, स्टेट ही ब्यूरोक्रेसी लेड होगा, स्टेट लेड मॉडल होगा वेलफेयर एरा के अंदर। तो ये मैक्सिमाइज करने का बात करता है, तो बट दैट वाज नॉट एम्पावरिंग द सिटीजन, वो तो डिस एम्पावर कर रहा है, चॉइसेस ही खत्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो पब्लिक चॉइस आता है, जो हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में एस्पिरेशन आ रहा है, डेवलपमेंट हो गया, लोग है ना क्वालिटी सर्विसेज चाह रहा है, तो वो क्वालिटी सर्विस कहाँ से आएगा, जब हम कंपटीशन क्रिएट करेंगे, जब हम है ना प्राइवेट सेक्टर को इनकॉर्पोरेट करेंगे, या इनोवेशन लेके आएंगे, क्रिएटिविटी लेके आएंगे, है ना। तो तभी जाके हमको क्या होगा, चॉइस मैक्सिमाइजेशन होगा, कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म, एक टर्म यहाँ पे अपन काफी पॉपुलर होता है इसके साथ, इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म। इसका मतलब हो गया कई सारे इंस्टीट्यूशन आपस में कॉम्पीट करेंगे, है ना, किस लिए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो लोगों के पास चॉइस है। अब अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो हम देखते हैं कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहा है सेम, है ना, अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग प्राइस का। तो वी हैव चॉइस, एवरीवन हैज सम चॉइस टू मेक, है ना, अलग अलग लोग। तो ये चॉइस को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है मार्केट अप्रोच से। तो चॉइस मैक्सिमाइज हुआ तो इसका मतलब हम लोग क्या है, इंपावर हो गए, वी हैव द डिसीजन मेकिंग पावर, वी आर फीलिंग मोर इंपावर्ड। लेकिन क्या 1950-60 के जनरेशन को कोई चॉइस नहीं था, गवर्नमेंट ने जो बना के दे दिया उसको लेना पड़ेगा, चाहे किसी भी क्वालिटी का हो। इंपोर्ट पे भी रेस्ट्रिक्शन था, इसलिए एलपीजी जब देखते हैं कि ना ग्लोबलाइजेशन के फेज में लिबरलाइज किया जा रहा है मार्केट को, तो इसलिए जो पहला फेज था 1950-60 का, वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्री में भी सिमिलर प्रॉब्लम जो हम 90s में फेस किए, वो लोग 1960s के दौरान सिमिलर प्रॉब्लम फेस किया था। ठीक है, वहां पे भी वेलफेयर एरा का, क्यों वेलफेयर एरा का भी कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि देखो 1917 में सोवियत रेवोल्यूशन आया, है ना, फिर किनेसन क्या क्या इम्पैक्ट किया था वेलफेयर स्टेट का राइज होने से पीछे भी कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक तो 1929 का जो है ना इकोनॉमिक डिप्रेशन, उसके बाद किनेसियन इकोनॉमिक्स आ गया। दूसरा हमने क्या देखा, सोवियत रशिया में जो रिवोल्यूशन आया था, है ना, 1917 में, वो भी इम्पैक्ट करता है, स्टेट लेड डेवलपमेंट की बात करेगा।
फिर उसके बाद है ना वेलफेयर स्टेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का डोमिनेंस आ जाता है, मोनोपोली आ जाता है। तो दीज वर द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अब ये क्या होगा, 1960 आते आते दे वर फेलिंग, है ना, 30 से 30 40 50 साल में फेल करने लगा। तब जाके यहाँ पे रिफॉर्म आता है, रीगनिज्म थेचरिज्म के फॉर्म में या एलपीजी के फॉर्म में, प्राइवेटाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट। तो चॉइस को मैक्सिमाइज करना है ना। तो अब अल्टरनेटिव मॉडल कौन दे रहा है? एक तरफ क्या देख रहे थे, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, वो 1968 में हुआ, देखो पैरेलल डेवलपमेंट चल रहा है, इसी के पैरेलल एक और अल्टरनेटिव मॉडल लेके आया। वेलफेयर स्टेट को अल्टरनेट क्या दे रहा है कि हेजुमनिक रोल जो है स्टेट का, है ना, चॉइस को मैक्सिमाइजेशन करना है। कैसे करेंगे? न्यू लिबरल मार्केट फिलोसफी लेके आएंगे। इसके कई सारे फ्रेडमैन है, विंसेंट ओस्टरमैन, निस्कानन है। तो देवर द स्कॉलर्स, देवर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स कि चॉइस मैक्सिमाइजेशन कैसे हो, एफिशिएंसी कैसे बढ़े, है ना। इससे क्या होगा, बाद में जाके न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का इमरजेंस भी होगा न्यू पैराडाइम के फॉर्म में, है ना, या गुड गवर्नेंस का जो पैराडाइम आता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो इन्फ्लुएंस आता है ना, न्यू राइट फिलोसफी वो बोलते हैं, न्यू लिबरल फिलोसफी भी बोलते हैं। तो ये क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 1929 के पहले क्या था कि भाई लेसे फेयर इज स्टेट। लेसे फेयर इज स्टेट मतलब वहां पे स्टेट का इंटरफेरेंस बिल्कुल कम होगा, मार्केट विल डू एवरीथिंग, है ना, मार्केट विल फाइंड द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। लेकिन 1929 में क्राइसिस आ गया, इसलिए कीनेसियन इकोनॉमिक्स आ गया, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन ये 2060 आते आते फेल कर गया। तो इसलिए जो पहला फेज था लिबरल फेल, यानी क्लासिकल इकोनॉमी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पे डोमिनेंट था। लेकिन बाद में जो एडम स्मिथ का जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स 1929 के पहले काफी डोमिनेंट था कि मार्केट इज बेस्ट, मार्केट विल प्रोवाइड ऑल द सॉल्यूशन। बाद में जाके क्या हुआ, स्टेट फेलर, जब मार्केट फेल किया उसके बाद हम लोग देख रहे किनेसियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आएगा, और हम लोग देख रहे हैं कि नए तरीके से लिबरल स्कूल ऑफ फिलोसफी वापस से रिवाइव होता है। ठीक, कॉन्टेक्स्ट क्या इमरजेंस, एक तो वेलफेयर स्टेट का फेलियर, अगेन, है ना, मल्टीपल टाइम्स आई एम रिटरेटिंग सो दैट दिस कहानी एकदम सबके माइंड में सेट हो जाए, फिक्स हो जाए, कहीं भी है कॉन्टेक्स्ट को लेके कभी भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन है आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा। बाकी स्पेसिफिक कंटेंट है, जो कीवर्ड्स दिए गए उसको याद कर लेना है ना। तो फेलियर ऑफ द वेलफेयर स्टेट हो गया, न्यू लिबरल स्कूल इमर्ज होगा, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है। इसके अंदर न्यू लिबरल फिलोसफी हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लासिकल स्कूल में तो मार्केट वार्केट सब कुछ किया गया था, बाद में लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच थोड़ा सा स्टेट को लेके है कि स्टेट का भी रोल आता है, रेगुलेटर, फैसिलिटेटर, है ना। तो अब इसमें कई सारे स्कॉलर जो है अलग अलग देखेंगे स्कूल ऑफ थॉट, जैसे डेमोक्रेटिक पैराडाइम है विंसेंट ओस्टम है, तो वो क्या 4D की बात करेगा। रेगुलेटरी कैप्चर है, स्टिगलर को क्या बोलेगा कि जो रेगुलेटर था उसका काम मार्केट को रेगुलेट करना था, लेकिन बट दे गॉट कैप्चर्ड बाय द क्रोनी कैपिटलिस्ट, है ना। मार्केट रेगुलेटर को कैप्चर कर लिया, यानी रेगुलेटरी कैप्चर मतलब जो रेगुलेट करने के जिसको जिम्मेदारी दिए थे, है ना, दे वेर, है ना, दे डेवलप नेक्सस विद द प्राइवेट सेक्टर, उससे भी समस्या आ गई। बजट मैक्सिमाइजेशन स्कूल है विलियम निस्कानन का। अभी क्या है ना, जैसे हर डिपार्टमेंट क्या चाह रहा है, जब भी बजट सेशन होता है हर डिपार्टमेंट ग्रांट्स के लिए अपील करता है कि हमारे डिपार्टमेंट को इतना पैसा चाहिए। हर डिपार्टमेंट अपना मैक्सिमम बजट चाहता है, ताकि जितना अधिक रिसोर्स होगा उतना अधिक डिपार्टमेंट पावरफुल होता है। तो दैट वाज द टेंडेंसी दैट वाज एक्सपोज्ड बाय विलियम निस्कानन। रेंट सीकिंग बिहेवियर, है ना, जैसे आप सब, ऑल ऑफ यू माइट हैव, मेनी ऑफ यू हैव माइट हैव विटनेस्ड नो करप्शन, कि भाई कोई भी काम कराने जाओ तो वहां पैसा मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? सरकार तो तनख्वाह दे रही है, नहीं नहीं, फिर भी आपको काम कराना है, जल्दी काम कराना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में पैसा ले रहा है उधर, है ना, डीलिंग में हर जगह पैसा, पेंशन लेने जाओ तो पैसा मांग रहा है, या बैंक से लोन इशू कराना है तो पैसा मांग रहा है। तो दैट वाज एक्सपोज बाय टुलॉक, है ना, रेंट सीकिंग बिहेवियर। ब्यूरो शेपिंग मतलब अब कई सारे ब्यूरोक्रेट, जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अब उसने देखा कि भाई हम जब अगर बजट मैक्सिमाइजेशन, है ना, ये दिस टू स्कूल्स आर रिलेटेड। तो बजट मैक्सिमाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स वांट टू मैक्सिमाइज द बजट फॉर देयर डिपार्टमेंट, है ना, अपने डिपार्टमेंट में अधिक से अधिक पैसा है तो रिसोर्स आएगा तो पावरफुल होगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, जो एक अल्टरनेटिव स्कूल को हाईलाइट किया किया गया, इसमें हम देखते हैं कि जो पैसा अगर अधिक आता है, अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, करप्शन होने के चांसेस बन गया, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, उसके काउंटर में देयर वर टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स हु वर लुकिंग फॉर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, है ना, जैसे कई सारे कमिटी का गठन होता है, तो उसमें देखते हैं एक्स IAS ऑफिसर, एक्स जस्टिस, तो वो कमिटी का चेयरमैन, ट्रिब्यूनल में अपॉइंटमेंट पा लिया, यानी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, इंटेंजिबल बेनिफिट, उसको एक्सपोज करते हैं पैट्रिक डनलेवी ने, है ना। उसके बाद एक वर्जिनियन स्कूल, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है जो हम लोग देखेंगे नियोलिबरल फिलोसफी में। तो अल्टीमेटली क्या है ना कि ऐसा इसको बोलता है कि हर कोई सेल्फ इंटरेस्टेड होता है ना, ऑल ऑफ अस आर सेल्फ इंटरेस्टेड। तो इसमें क्या होता है कि एवरीवन वांट टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट फ्रॉम द सिचुएशन। नेता का काम क्या है, जैसे अभी चार स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, तो पॉलिटिशियन क्या चाह रहा है
कि भाई वोट मैक्सिमाइज करना ही तो टारगेट है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा, बजट मैक्सिमाइज कर रहा है। तो हम लोग बोलते हैं वोट मैक्सिमाइजर कौन है, नेता है, पॉलिटिशियन है। और बजट मैक्सिमाइजर कौन होता है, नॉर्मली जो ब्यूरोक्रेट को ट्रेन ना आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें ना प्रॉब्लम आता है कि इंडिविजुअल एनालिसिस किया गया, हर इंडिविजुअल के बिहेवियर साइकोलॉजी को भी एनालाइज किया गया। ठीक है। तो अब जैसे मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, हाँ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग, कि देखो ये इंडिविजुअल शुड बी द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्योंकि ये एज्यूम क्या करता है, everyone is rational, you cannot treat, can we, can state, जैसे वेलफेयर स्टेट में क्या कहता था, ये लोग सब ने बेवकूफ है, उसको कुछ पता नहीं क्या करना है कैसे करना है, हम करके देंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो पीपुल, इट वाज डिमीनिंग टू द पीपल आल्सो, कि भाई हमारा तो कोई रेशनैलिटी कंसीडरेशन, हमारा कोई इंडिविजुअल कंसीडरेशन नहीं है, ग्रुप में हमेशा कलेक्टिव बात होगा, कि कलेक्टिव सॉल्यूशन होगा, गोल है तो सब कुछ कलेक्टिव। यहाँ पे मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म का आया, तो इसका मतलब होता है कि हम इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज वेरी मच सिस्टमैटिक इन देयर डिसीजन मेकिंग, है ना। आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, यू आर वेरी कैलकुलेटिव, यू आर वेरी सिस्टमैटिक इन योर अप्रोच। तो यही मेथोडोलॉजिकल मतलब रेशनल है, सिस्टमैटिक है, मेथोडोलॉजिकल है ना। वी आर नॉट रैंडम इन आवर डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो ये हो गया, ये मेजर, ये ना ये सारा एनालिसिस जो है बेसिकली मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म के आइडिया से इमर्ज होता है ना। जब इंडिविजुअल को एनालाइज किया गया, उसके साइकोलॉजी को, हाउ गेटिंग इनटू द माइंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट एंड थिंक व्हाट दे आर थिंकिंग, जो साइमन ने भी स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, पब्लिक चॉइस अप्रोच का जो कॉन्टेक्स्ट है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, स्टेट फेलियर कर गया, है ना। उसके बाद अल्टरनेटिव सॉल्यूशन चॉइस मैक्सिमाइजेशन का ये देता है न्यू लिबरल फिलॉसफी यूज करते हुए। फ्रेडमैन का कहना है कि भाई मार्केट जो है ज्यादा एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है, तो दे विल रिजेक्ट द वेलफेयर मॉडल। क्वेश्चन करेगा ये जो पब्लिक सर्विस वाला कॉन्सेप्ट को ही पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे क्या कर रहा है नेता लोग, सर, है ना, ऑफिसर लोग क्या कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट दे आर मैक्सिमाइजिंग देयर ऑन पर्सनल इंटरेस्ट। तो अगेन that was exposed, the limitations were exposed by the public choice approach। तो अब ये वेलफेयर स्टेट का जो हमने डिस्कस किया था, है ना, 90 पहले क्या था, लेसे फेरे था, फिर वेलफेयर स्टेट 40s 50s में आया, फेल कर गया, है ना, 1960 70 आते आते। ये आखिर ये वेलफेयर एरा क्यों इमर्ज हुआ, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट क्या देख लिया, 1970 का कॉन्टेक्स्ट है ना। वेलफेयर एरा, रशियन रेवोल्यूशन आया, न्यू डील प्रोग्राम यूएसए में अंदर, जो कीनेसियन इकोनॉमिक्स हमने देखा, वर्ल्ड वॉर टू के बाद का सिचुएशन, डीकोलोनाइजेशन हो रहा है, कई सारे कंट्री डीकोलोनाइज हो गए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेट का बात कर रहा था सब लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या लेविएथन स्टेट मतलब बिग स्टेट, है ना, हॉब्स का जो कॉन्सेप्ट। तो ये हम लोग देखें, एक तरफ जो पुश एंड पुल फैक्टर कहते हैं, अर्बनाइजेशन हम लोग क्या थे, तो देयर आर पुश एंड पुल फैक्टर। तो दीज आर फैक्टर्स which became the reason for emergence of alternative school। और ये जो न्यू लिबरल स्कूल वाले जो है ना सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, है ना, तो दैट वाज मोर प्रैक्टिकल, मोर एक्सेप्टेबल, इसलिए काफी डोमिनेंट हो जाता है, काफी प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है। अब वही सेम चीज अगेन, थिंग्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड, है ना। विल जस्ट थ्रू द, है ना, कंटेंट को देख लेते हैं, एक्सपोज द वीकनेस, है ना, हमने देख ही लिया। ये क्या करेगा, पॉलिटिशियन बिहेवियर को, ब्यूरोक्रेट के बिहेवियर को और सिटीजन के बिहेवियर को एनालाइज करता है। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच जो हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर साइकोलॉजी को एनालाइज करके निकालता है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे क्या कर रहा है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है ना। तो दे आर सेल्फ एग्रेंडाइजिंग, सेल्फ इमर्जमेंट, जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, अपना खुद का इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। ठीक है। यूजिंग द स्टेट प्रॉपर्टी, जैसे कई बार मिसयूज ऑफ स्टेट रिसोर्सेज, है ना, तो ये मना किया जाता है, या ब्यूरोक्रेट भी बोलता है वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी आइडियल ब्यूरोक्रेसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट दे आर मैक्सिमाइजिंग देयर पर्सनल इंटरेस्ट। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यहाँ पे बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है ना, कि जैसे ऑल ऑफ यू, है ना, आल्सो यू कैन लुक एट, प्रैक्टिकली जब हम ऑफिस जाते हैं देखते हैं, कि हर किसी का, जैसे सरकारी ऑफिस जाते हैं तो उसका कस्टमर, है ना, पीपुल के साथ क्या बिहेवियर होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सर्विस लेने जाते हैं, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन कस्टमर, तो उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है। तो उसने क्या अप्लाई किया, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी को अप्लाई किया, है ना। तो उसमें बायर सेलर का जो रिलेशनशिप होता है कि भाई स्टेट इज लाइक ए सेलर एंड वी आर द बायर। तो दैट वाज द कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। ये टर्म आप यूज कर सकते हैं पब्लिक चॉइस थ्योरी का अप्रोच। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या कि बिहेवियर को एनालाइज किया, एक्सप्लेन करता है। ठीक है। तो अगेन ऑल द थ्योरेटिकल डेवलपमेंट आर ओनली टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब बजट मैक्सिमाइजेशन का भी देख ही लिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है, हर डिपार्टमेंट क्या करेगा, जब भी बजट सेशन, अभी जैसे बजट सेशन आगे अगला आने वाला है, तो हर डिपार्टमेंट क्या करेगा, हमको अधिक पैसा दे दो, काम करे ना करे लेकिन पैसा खूब चाहिए, रिसोर्स खूब चाहिए। रिसोर्स आएगा तो पावरफुल हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाता है, लोग अधिक से अधिक डिपार्टमेंट के पीछे भागते हैं,
है ना। तो पीपुल है ना, और जो ऑफिसर है, ऑफिसर क्या चाह रहा है, हमको ना प्रमोशन दे दो, पोस्टिंग दे दो, इंक्रीमेंट दे दो, तो दे आर सेल्फ इंटरेस्टेड। अब पॉलिटिशियन क्या है, वोट मैक्सिमाइजर है ना। पॉलिटिशियंस क्या चाहेगा कि भाई अपना बजट में ये तुम लोग को पैसा चाहिए, जो चाहिए प्रमोशन इंसेंटिव जो चाहिए लो, लेकिन पॉलिटिशियंस क्या करेगा, अपना सेल्फ इंटरेस्ट कैसे सर्व करेगा, वोट मैक्सिमाइजेशन। तो दिस इज द बजट मैक्सिमाइजेशन। फिर उसके बाद पार्किंसन लॉ क्या आता है कि डिपार्टमेंट का काम तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आर इंक्रीजिंग। अब ये क्या हुआ कि यूके का जो 1950 का दौर देखा, उसमें देखा गया कि जो डीकोलोनाइजेशन, एक तरफ क्या हो रहा है, डीकोलोनाइजेशन हो रहा है। डीकोलोनाइजेशन से क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑफिसर्स कम होने चाहिए डिपार्टमेंट में, जो बाहर के कॉलोनीज को देखता था। लेकिन एक तरफ तो डीकोलोनाइजेशन हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ क्या देख रहे हैं, वहां पे ना ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हायरार्की बढ़ता जा रहा है। तो एकदम आर्टिफिशियली वर्क को क्या कर रहा है, इन्फ्लेट किया जा रहा है ना। तो दैट इज द आल्सो पार्किंसंस लॉ, है ना। वर्क काम बढ़ नहीं रहा है, लेकिन नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है ना। तो ये पार्किंसंस लॉ के एविडेंस वो रिलेटेड, दोनों रिलेटेड है ना, उसको सप्लीमेंट करता है ये कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग देख रहे हैं कि ना इसमें क्या होता है कि बजट मैक्सिमाइजेशन जो है ये मतलब हर डिपार्टमेंट बजट को मैक्सिमाइज कर रहा है। इसी के काउंटर में ब्यूरो शेपिंग आया एक एज अल्टरनेटिव। बजट मैक्सिमाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं, दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर बजटरी एलोकेशन, बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन बजटरी एलोकेशन क्या होगा, अब उससे क्या होगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी भी आ गया ब्यूरोक्रेट्स का, सीएजी ऑडिट होगा, है ना, या करप्शन हो गया तो ऑफिसर्स को पकड़ के जेल किया जाएगा। तो कई लोग ने इंटेंजिबल बेनिफिट्स की ओर चले गए। ब्यूरो शेपिंग में क्या है, इंटेंजिबल बेनिफिट्स, कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट चाहिए, है ना। ब्यूरो शेपिंग मॉडल मतलब अपने शेपिंग, मतलब इसका मतलब ब्यूरो शेपिंग मतलब ब्यूरोक्रेसी इज शेपिंग वंस ऑन गेन इन इंटेंजिबल फैशन, है ना। तो ये हम लोग को एक अल्टरनेटिव भी, ये भी क्या है, ब्यूरोक्रेट्स के बिहेवियर को ही हाईलाइट कर रहा है। रेंट सीकिंग में भी क्या सिंपल देखे कि जब भी है ना कोई काम होगा परसेंटेज, अभी जैसे कई सारे ना न्यूज में या देखते हैं कि परसेंटेज, जैसे मान लो कर्नाटका इलेक्शन था, है ना, कमीशन वाले गवर्नमेंट 30%, 20%, 40% कमीशन वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, वही है कि है ना परसेंटेज लेना है। अब ये कोई भी लोन दे रहा है, कोई भी है ना पेंशन दिया, हर जगह आपको पैसा मांगा जा रहा है। रेंट सीकिंग एटीट्यूड जो तो लोग ने हाईलाइट किया, ये भी बिहेवियर से है ना, इंडिविजुअल के बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया। रेगुलेटरी कैप्चर है, इसमें क्या देख रहे हैं, वही है कि जो रेगुलेट करने, कंपनी को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी जिसको दी गई, दे वेर कैप्चर्ड, है ना। तो रेगुलेटर बिकेन यू नो कॉर्पोरेट एजेंट जो है उसके साथ नेक्सस डेवलप कर लेता है। नेक्सस से क्या होगा, रेगुलेटरी फेलियर होगा। बाद में जाके 2008 का क्राइसिस का ये फैक्टर भी, रीजन भी बना, यानी रेगुलेटरी एजेंसीज हैव फेल्ड। फिर एक क्वेश्चन डायरेक्टली देखो, इंडिविजुअल स्कूल्स है ना, क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल स्कूल्स ऑफ थॉट आल्सो। इस सारे मॉडल पे एक क्वेश्चन आ सकता है, छोटे 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। अब डेमोक्रेटिक पैराडाइम है ना, ये विंसेंट ओस्टम ने दिया था। इसने एक डी नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। डेलीगेशन के बदले क्या कर दिया, डी नेशनलाइजेशन। 4D का कॉन्सेप्ट ये देता है। 4D में क्या क्या होगा, एक तो है ना डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया, या उसके बाद डी नेशनलाइजेशन हो गया, और डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो ये सारे मतलब एक डिफरेंस आता है इसने प्राइवेटाइजेशन को भी, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन का दौर है। तो डेमोक्रेटिक पैराडाइम क्या बोलता है कि ही वाज क्रिटिक टू बोथ। साइमन का बॉन्डेड रेशनैलिटी का भी क्रिटिक था और क्लासिकल अप्रोच का भी क्रिटिक था। क्यों, कि उसका ये मानना था कि पीपुल आर, इंडिविजुअल्स आर रेशनल, है ना। अगर हमको कोई बोले कि भाई तुम तो रेशनल नहीं हो, तो वी विल फील हर्ट कि हम ऐसा कहीं रेशनल, तो हम कई बार रेशनल ही है मोस्टली, है ना, बट वी मे हैव द बॉन्डेड रेशनैलिटी। लेकिन ये लोग जो डेमोक्रेटिक पैराडाइम स्कूल है विंसेंट, ये क्या बोलता है, हम लोग सारे पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब जाके हम लोग डिसीजन लेते हैं, है ना। तो उस सारे कॉन्सेप्ट को जो इंटेलेक्चुअल क्राइसिस एक बुक लिखा गया, तो इसने वो किताब में क्या मेंशन किया कि भाई 4D स्ट्रेटजी लेके आओ। डेमोक्रेटाइजेशन करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, डी नेशनलाइजेशन जो प्राइवेटाइजेशन जिसको बोलते हैं, और डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। देखो 4D में बस एक ही डिफरेंस, डेलीगेशन के बदले क्या लिख दिया यहाँ पे, डी नेशनलाइजेशन, है ना। तो ये एक डिफरेंस है 4D में, जो एनपीए में भी स्ट्रेटजी जो सजेस्ट किया गया था, ठीक है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। यहाँ पे ना कई बार कंफ्यूजन होता है, जब आंसर लिखोगे तो वहां पे लगेगा एक पॉइंट क्या था, तो डिवोल्यूशन या कुछ और लिखा जाता है। तो डी नेशनलाइजेशन डेलीगेशन के बदले में, बाकी सब मोरलेस है ना सिमिलर है। उसके बाद 4D का तो तरीका, इसने सॉल्यूशन दिया कि किस प्रकार हम ग्रेटर पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटाइजेशन करेंगे, लोगों को वॉइस दिया जा रहा है ना। डी नेशनलाइजेशन मतलब प्राइवेटाइजेशन होगा तो मैं कई सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, उससे क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा और लोगों को अधिक से अधिक चॉइस मिल सकता है। दैट वाज द आइडिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट। अब तक क्या वेलफेयर स्टेट क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे काम करता था, है ना। इनएफिशिएंसी को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नरेगा स्कीम, एमजी नरेगा। इसमें क्या देख रहे हैं, नरेगा स्कीम में क्या देख रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, है ना। पीडीएस है, पीडीएस में भी कई सारी समस्या है।
बट स्टिल दे आर कंटिन्यूड इन द नेम ऑफ पब्लिक वेलफेयर की, पब्लिक वेलफेयर के नाम पे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोगों का गरीबी और ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इनएफिशिएंसी, करप्शन को भी जस्टिफाई किया जा रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को भी जस्टिफाई किया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या, ये अल्टीमेटली ऑल दीज स्कूल्स विल ट्राई टू लिमिट द रोल ऑफ स्टेट। जैसे कैलकुलस ऑफ कंसेंट ने भी, है ना, इसने लिखा था, किसने लिखा, ये तुलॉक और बुचनन ने लिखा। इसका कहना यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लो कि जो भी कंसेंट, मतलब पीपुल से कंसेंट होना चाहिए। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी सिटीजन का भी तो कंसेंट होना जरूरी है, लोगों को क्या चाहिए। तो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म समझ चुके हैं। इंडिविजुअल आर वेरी सिस्टमेटिक इन डिसीजन मेकिंग, है ना। बेस्ट, हमको अगर मान लो कि आप सबको भी चॉइस दिया जाए, तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द बेस्ट चॉइस, है ना, बेस्ट डिसीजन लोगे आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने मैक्सिमाइज, अपना गेन को मैक्सिमाइज करेंगे ना किसी भी सिचुएशन में। एंड देन वी आर आल्सो, है ना, विल टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन आवर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। तो जब सिटीजन अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे डिसीजन ले सकता है, पॉलिटिशियंस आर टेकिंग, ब्यूरोक्रेट्स आर टेकिंग, एवरीवन इज टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सारे जो बिहेवियर हमने देखा, बजट मैक्सिमाइजेशन, रेंट सीकिंग, तो बिहेवियर के आधार पे पॉलिटिशियन और सिटीजन, जैसे पॉलिटिकल कल्चर में भी क्या देखते हैं कि हर कोई क्या, चॉइस मैक्सिमाइजेशन, कौन सा पार्टी किसको, जैसे फ्रीवी का डिबेट क्यों चल रहा है ना, आजकल क्या नया डिबेट चल रहा है, फ्रीवीज का। फ्रीवीज में क्या, सिटीजन भी अब क्या सोच रहा है कि नेता लोग, ऑफिसर लोग तो कमा लिया, हमको क्या मिला, हमको भी चाहिए फ्री में खाना पीना, है ना, हमको भी बहुत सारे सर्विसेज। तो देर आर पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स, है ना, वेलफेयर मेजर्स के भी कई सारे पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स है, जो हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग इकोनॉमिक्स या डिबेट में नॉर्मली। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पीपुल, पॉलिटिशियन आर वोट मैक्सिमाइजर, सिटीजन अपना इंटरेस्ट मैक्सिमाइजर होगा, अपने इंटरेस्ट में कौन काम कर रहा है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, लोगों के लिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिया, या फिर वाटर फ्री कर दिया, हेल्थ एजुकेशन पे काम कर रहा है। तो डिस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, दे आर स्टिल एबल टू विन द, क्योंकि लोग को भी समझ आ गया कि भाई अपने हित में का सोचो, अपना फायदा हो रहा है जिससे, है ना। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स टू अंडरस्टैंड, दीज आर द वेरियस स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, तो अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। एनीथिंग टू आस्क बिफोर वी टेक द ब्रेक? इज द थिंग्स क्लियर? आर यू ऑल एबल टू गेट इट? Yes. Yes, sir. ओके ओके, नो टेक ए 2 मिनट्स ब्रेक। हाँ हाँ, प्लीज आस्क। सर Q&A सेशन कब होगा? हाँ, ये मंडे को करते हैं। ठीक है, ठीक, मतलब चैप्टर 1 के बाद, राइट? हाँ हाँ, चैप्टर 1 के बाद, ताकि, है ना, 2 दिन का भी टाइम भी मिल जाएगा आप लोग को। यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक, विल टेक 2 मिनट्स ब्रेक। तो देखो, 1950s और 60s का जो दौर हमने डिस्कस किया, 1950s एंड 60s, है ना, कि किस प्रकार से स्टेट का भी जर्नी, किस प्रकार से 1960 से 1990 के बीच में वेस्टर्न कंट्री में क्या क्या चेंजेस हुआ। क्योंकि द कॉन्टेक्स्ट है, अभी जो भी हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे थे, आर मोस्टली लिंक टू द यूएसए है, यूके है ना, वेस्टर्न कंट्री को भी हम बेस बना रहे हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट में सारा डेवलपमेंट हो रहा है। 1990s के बाद सिमिलर कहानी, है ना, इंडिया में वापस रिपीट हो रहा है। यू कैन आल्सो रिलेट इट, इंडिया में भी सिमिलर कहानी अभी भी देखो वही चल रहा है। फेज हम लोग जो 1960 70s में यूएसए यूके ने फेस किया, वो कहानी को हम रिपीट कर रहे हैं इधर 90s के बाद। ठीक, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या क्या है। एक तो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, मतलब हर कोई इंडिविजुअल जो है ना, जितने भी हम सब, ऑल द टीम मेंबर्स, ऑल द ऑल ऑफ यू आर अटेंडिंग द क्लास, ऑल ऑफ यू आर वेरी सिस्टमेटिक इन डिसीजन मेकिंग, यू हैव दैट रेशनल थिंकिंग। कि कोई भी, अगर हमारे पास कई अल्टरनेटिव्स है, आई विल टू है ना, वही चूज करेंगे जो हमारे बेस्ट पब्लिक, है ना, इंटरेस्ट में होगा। उसके बाद 4D स्ट्रेटेजी जो हमने डिस्कस किया, कि डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब पीपल का, है ना, अल्टरनेटिव चॉइसेस हो, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस आ जाए। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा, पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। डीनेशनलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन पर प्रमोट करे, और डीब्यूरोक्रेटाइजेशन मतलब टॉप डाउन हायरार्कियल अप्रोच को क्या करना है, खत्म करना है। फिर इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म, कई सारे इंस्टीट्यूशंस आ गए, है ना, पहले क्या था, एक ही इंस्टीट्यूशन सारा करता था, अब आगे कई सारे इंस्टीट्यूशन। सर, हाँ हाँ प्लीज। सर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हम्म। डेमोक्रेटाइजेशन बोला था, एंड हाँ जो हाँ पीछे डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर रहा है, उन दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम है? देखो, गोल के टर्म में तो सिमिलर है, क्योंकि वो जी। ना, वो भी क्या कि डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर रहा है। तो मेजर डिफरेंस स्ट्रेटजी में आ गया डी नेशनलाइजेशन, यानी वो डेलीगेशन की बात कर रहा है, लेकिन ये डी नेशनलाइजेशन यानी प्राइवेटाइजेशन के तरीके से, मीन्स में डिफर कर रहा है ना। एंड तो तो अभी भी क्या है, गोल तो अभी भी वही है कि सर्विस करना है, लोगों को वेलफेयर करना है, लोगों के नीड्स को फुलफिल करना है।
तो जैसे अभी क्या बोलते हैं कि अभी एक जीएस में भी क्वेश्चन आता है, आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स हैज द इंडिया सेड इट्स सोशलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। तो उसमें हम लोग क्या आर्गुमेंट देते हैं कि इंडिया ने तो सोशलिस्टिक गोल्स को है ना गिव अप नहीं किया, या फिर वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, लेकिन हमारे जो स्टेट जो एज इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, पब्लिक सेक्टर इंस्ट्रूमेंट को तरह यूज करते थे, दैट हैज बीन चेंज। नाउ वी आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, मार्केट है, प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है। ठीक है, आर यू एबल टू गेट इट? मतलब डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब बेसिकली सर, क्योंकि अगर हम एनपीए में बात करें तो आपने यहाँ पे बोला डेमोक्रेटाइजेशन मींस दैट वी आर मैक्सिमाइजिंग द चॉइस ऑफ पीपल, राइट? हम्म। तो ये सेम चीज एनपीए के नहीं, कॉन्टेक्स्ट हाँ में मतलब, है नहीं ना, हाँ कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट। डेमोक्रेटाइजेशन ये पॉलिटिकल टर्म में, जैसे यहाँ ना पॉलिटिकल टर्म में कि मतलब लोगों को इंपावर कर रहे हैं, डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, वॉइस दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं। वॉइस मतलब पीपुल आर हैविंग द से इन द सिस्टम। तो वहां पे क्या था, प्रॉब्लम ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, पीपुल ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रो पीपुल होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो दैट इज आल्सो प्रॉब्लम ओरिएंटेड, पीपुल ओरिएंटेड, है ना। तो वो डेमोक्रेटाइजेशन मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के वॉइस को इंपावर कर रहे हैं ना, people जी are सर, getting the voice, that is the concept। ठीक है। थैंक यू सर। इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म देख लिया है ना, पहले एक इंस्टीट्यूशन, बाद में कई सारे इंस्टीट्यूशन, कंपटीशन होगा तो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आ गया। फिर कॉन्ट्रैक्ट आउट का बात हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। यहाँ पे क्या है कि स्टेट को खत्म, वेलफेयर एरा, जब वेलफेयर स्टेट को हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, यानी स्टेट को विड्रॉ करो, रोल बैक करो, स्टेट को मिनिमाइज होना चाहिए, प्राइवेटाइज करना है, कॉन्ट्रैक्ट आउट अधिक से अधिक करना है, डिब्यूरोक्रेटाइज लिमिट करना है, ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि जो रेड टेपिज्म है ना, हम लोग क्या अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, ब्यूरोपैथोलॉजी है, ब्यूरोमानिया है, रेड टेपिज्म है, तो ये सब क्या रिफ्लेक्ट करता है, ऑल दीज रिफ्लेक्ट द ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स, है ना, कि भाई कोई भी काम हो रहा है, इतना डिले हो रहा है, रिजिडिटी है। तो डिब्यूरोक्रेटाइज करने, सिंप्लीफाई करना है, कंपटीशन क्रिएट करना है, ताकि एफिशिएंसी आ जाए, और मोनोपोली को खत्म करना है। दिस वाज द आइडिया ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच। सेम थिंग सेम थिंग आर गोइंग टू बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट, है ना, जितने भी टॉपिक्स है, जो ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस। तो मार्केट प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ पे क्या है कि अल्टीमेटली क्या होगा, स्टेट शुड डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज टू द, है ना, लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, लेकिन किसके हेल्प से, मार्केट के थ्रू, है ना। इंस्ट्रूमेंट को बदलना है, इंस्ट्रूमेंट नीड टू बी चेंज, क्योंकि स्टेट एज इंस्ट्रूमेंट हैज फेल्ड, ब्यूरोक्रेसी एज इंस्ट्रूमेंट हैज फेल्ड वेलफेयर स्टेट एरा में। तो इसलिए मार्केट पे डिपेंडेंसी बढ़ गया। डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट होना चाहिए, मार्केट को पावर दे दो। मार्केट है ना, कैन आल्सो, अब लेकिन समस्या क्या, मार्केट कैन हैव आल्सो मोनोपोली हो सकता है। तो इसलिए कंपटीशन क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे कंपटीशन कैसे आता है, इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म लाना पड़ेगा, यानी मोनोलिथिक इंस्टीट्यूशन कोई नहीं होना चाहिए, चाहे स्टेट हो या प्राइवेट सेक्टर में भी। हम लोग क्या है ना कि अभी कोशिश क्या करते हैं कि मोनोपोली ना हो, वो भी सेक्टर अगर खुल रहा है, देयर आर मल्टीपल प्राइवेट सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर है ना, 90s के बाद क्या, पहले क्या था, एमटीएनएल था, बाद में कई सारे प्लेयर्स आ गए, तो कंपटीशन हुआ, कितना, है ना, सस्ते में क्या, चॉइस मैक्सिमाइजेशन हो गया, और कॉस्ट भी कम हो गया, कॉम्पिटिटिव इनोवेशन आ गया। तो पावर सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, एजुकेशन, हेल्थ, हर डिपार्टमेंट क्या देखना है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, चॉइस मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, और मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। तो वही है कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी सर्विस दे रहा है, किसके थ्रू, प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। गवर्नेंस बाय कॉन्ट्रैक्ट एक टर्म भी आता है, या गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो दीज आर द टर्म्स विच आर यूज फॉर दीज आइडियाज, कि भाई कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और बेस्ट क्वालिटी सर्विस देना है, क्वालिटी होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए। तो ये सब अल्टरनेटिव क्या है, मोर कंड्यूसिव है, अधिक लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना, बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस आ रहा है, एफिशिएंसी भी बढ़ गया। तो इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। इम्पैक्ट कैसे होगा, जैसे मान लो कि यूके है ना, हम लोग यहाँ पे न्यू लिबरल फिलोसफी के बेस के आधार पे, तो यूके के अंदर क्या हो रहा है, थेचरिज्म आ गया, रिगनिज्म, दे आर सेट ऑफ रिफॉर्म्स, मार्केट बेस्ड रिफॉर्म मेजर्स दैट वर इनिशिएटिव बेस्ड ऑन द, जैसे मान लो डीनेशनलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट है। तो ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ, इसी के अंदर पब्लिक चॉइस अप्रोच के इन्फ्लुएंस के कारण। क्यों पब्लिक चॉइस अप्रोच 1960 में आ गया, और 60-70 आते आते देख रहे हैं कि ये सारा इन्फ्लुएंस आ गया। तो तीन फोल्ड में अपन डिवाइड करते हैं इन्फ्लुएंस को, कि पहला एलपीजी आ गया, है ना, स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट भी राइज होगा, है ना, और एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ जाएगा। तो दीज वर द मेजर इंपैक्ट ऑफ द पब्लिक चॉइस अप्रोच। ठीक है। जो एनपीएम है उसको हम लोग देखेंगे, हाउ एनपीएम इज बोथ पब्लिक चॉइस अप्रोच प्लस, है ना, न्यू टेररिज्म कैसे है। तो वो हम लोग देखेंगे, न्यू टेररिज्म जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल होता है। पब्लिक चॉइस में क्या देख रहे हैं, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटिशन होना चाहिए, है ना। तो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप को पब्लिक चॉइस में स्टडी किया गया। और टेलर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करता है। तो दैट विल डिस्कस अगेन इन द अपकमिंग टॉपिक्स। ठीक। तो मेजर इंपैक्ट क्या, तीन फोल्ड एकदम याद होना चाहिए, टिप्स में होना चाहिए। एलपीजी है,
कैरेक्टरिस्टिक सब लिख ही सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट का डिबेट भी डायरेक्ट टॉपिक भी है, क्वेश्चन भी आता है ना। इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, एलपीजी को भी। ये दो टॉपिक तो काफी जीएस टाइप का है ना, जीएस कंटेंट। दिस इज हाउ यू यूज द कंटेंट ऑफ द पवेड इनटू जीएस आंसर है, या फिर जीएस के कंटेंट को पवेड में यूज करते हैं, एग्जांपल को, इवेंट्स को, स्टैटिस्टिक को। ठीक है। अब देखो 1990 आते आते देख रहे हैं कि मार्केट बेस्ड रिफॉर्म हर कंट्री में आ गया, लगभग सारे, है ना, 3 डिकेड ऑफ रिफॉर्म। तो अब 1960 से लेकर 1990 तक जो है वेस्टर्न कंट्री में ऑलरेडी 3 डिकेड्स ऑफ रिफॉर्म हो गया, है ना। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होगा। क्रिटिसिज्म क्या होगा कि अगर हम सब कुछ बिजनेस लाइक अप्रोच कर दिए, न्यू लिबरल फिलोसफी पे ले आए, तो लेकिन यहाँ पे सोसाइटी क्या है, इक्वल नहीं है ना। तो एक तो बिहेवियर जो पॉलिटिशियन, ये वो ऐसा नहीं कि सारे पॉलिटिशियंस जो है करप्ट ही है, सारे ब्यूरोक्रेट, बजट मैक्सिमाइजर, ब्यूरो से पर ही है ना। तो ऑल ऑफ यू जस्ट, अगर आपको बोला जाए कि ना यू आर जस्ट लुकिंग फॉर योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाई यू वांट टू इंटर, है ना, इंटरव्यू में अगर पूछा जाए व्हाई यू वांट टू इंटर इनटू पब्लिक सर्विस या ब्यूरोक्रेसी में क्यों आना है, सर आई वांट टू मैक्सिमाइज माय सेल्फ इंटरेस्ट, कहेगा अच्छा वेरी गुड। तो आई वांट टू मैक्सिमाइज माय ओन सेल्फ इंटरेस्ट, कि आप प्लीज है ना बाहर जाइए, आप है ना प्राइवेट, यू आर फिट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, नॉट फॉर पब्लिक सेक्टर। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक चॉइस जो अप्रोच ने एनालिसिस किया, दे हैव हाईलाइटेड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, है ना। उसने एक एस्पेक्ट को हाईलाइट किया कि भाई एक एस्पेक्ट ऐसा है जो डोमिनेटिंग था उसमें, क्योंकि मोनोपोली है गया, कंपटीशन नहीं है, तो सब लोग क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स है ना, दे और मतलब एवरीवन वाज यू नो सेल्फ मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये सब चल रहा था। ठीक है। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है, दे डू नॉट गिव द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, है ना। देयर आर पॉलिटिशियंस जो सेल्फ सेक्रीफाइस भी करता है, देयर आर ब्यूरोक्रेट्स हु आर वेरी मच प्रोएक्टिव, है ना। जैसे अभी एग्जांपल केरला का है ना, हंगर फ्री डिस्ट्रिक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग वो सब क्या देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आर वेरी कंपैशनेट, जो एथिक्स में पढ़ते हैं, है ना। तो एथिक्स के पॉइंट्स यहाँ पे काउंटर होना चाहिए, यानी पब्लिक चॉइस के पॉइंट्स को भी अपन एथिक्स के जो फिलोसफी हमने स्टडी किया वहां भी यूज कर सकते हैं काउंटर करने के लिए। तो दैट इज द आइडिया। फिर मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म में भी फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है? क्या हम हर समय सिस्टमेटिक होते हैं अपने थॉट में, हर समय रेशनल हो सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो साइमन ने तो ऑलरेडी बोल दिया, बाउंडेड रेशनैलिटी है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होता है, लिमिटेड, है ना। तो हम प्रोसेस भी नहीं कर पाते सारे इन्फॉर्मेशन को। मार्केट में अगर जाते हैं मोबाइल लेने, तो डू वी नो ऑल द बेस्ट प्रोडक्ट, है ना, सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड चॉइस है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है। तो बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। वी आर नॉट ऑलवेज सिस्टमेटिक, है ना। कई बार कैजुअल भी होते हैं कि भाई चलो ले लो, अच्छा लग रहा है तो ले लो, है ना। तो वी आर नॉट ऑलवेज सिस्टमेटिक। और उसके बाद हम हर समय मैक्सिमाइज गेन नहीं करता है, कई बार सेक्रीफाइस भी करते हैं। मान लो जैसे अगर ब्यूरोक्रेट बन गया तो, है ना, देयर आर पर्सनल लॉस, जो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आता है ना। तो कई बार क्या होता है, यू हैव टू सेक्रीफाइस। जैसे आर्मी ऑफिसर क्या कहेगा, भाई आई वांट टू मैक्सिमाइज माय ओन सेल्फ इंटरेस्ट, तो बॉर्डर पे हम जाएंगे नहीं, कौन लड़ेगा, है ना। तो दे हैव टू इवन सेक्रीफाइस। ऑफिसर्स होते, ब्यूरोक्रेट्स होते, दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस। मेनी ऑफ द ऑफिसर्स दे आर वर्किंग डे एंड नाइट टू सर्व द पीपल। तो दे आर नॉट ओनली मैक्सिमाइजिंग देयर ओन गेन। नहीं तो क्या होगा, करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म बढ़ जाएगा। भाई हम तो अपना मैक्सिमाइज करेंगे, हम तो कोई रिस्क लेंगे ही। दैट इज नॉट द आइडिया। तो यानी दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच। ठीक है। तो सोसाइटी में सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि कलेक्टिव अप्रोच का भी इंपॉर्टेंस है, पब्लिक गुड भी होता है ना। इसलिए पब्लिक गुड, पब्लिक इंटरेस्ट, वेलफेयर, सोशल जस्टिस को अंडरमाइन करता है ये पब्लिक चॉइस अप्रोच। ठीक है। तो ये हम लोग को क्रिटिसिज्म में देखना है कि पब्लिक कैरेक्टर ऑफ पबैड को है, ये लोग क्या कर रहा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ऑलमोस्ट इक्वेट करने का कोशिश कर रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो जो पॉलिटिशियन और बजट ना ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज सेल्फ बजट मैक्सिमाइजर नहीं है ना। सेल्फ सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहा है हमेशा। ठीक है। तो ये हमको देखना है। कॉन्ट्रैक्ट आउट करने से भी आज क्या हुआ प्राइवेट सेक्टर में, अभी देखो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, रेंट सीकिंग का प्रॉब्लम आ गया, ब्यूरो सेपिंग का, क्रोनी कैपिटलिज्म जो आज के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, जैसे अदानी का इशू चल रहा है, तो लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी हैज बीन क्रिएटेड। फिर कितने बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आउट प्राइवेटाइज कर दिया, तो हैज इट प्रोवाइडेड ऑल द सॉल्यूशन? तो देयर आर लिमिटेशन, देयर आर क्रिटिसिज्म। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट से भी एक और प्रॉब्लम आ रहा है, एडोकिज्म आ रहा है, कि कोई परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एडॉक बेसिस पे काम हो रहा है। तो वो सोशल सेक्टर के लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। फिर इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म है। यहाँ पे क्या कंपटीशन या कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए अपन क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। जैसे मान लो दिल्ली का एमसीडी का प्रॉब्लम, या दिल्ली में जो वाटर मैनेजमेंट का इशू है ना। देयर आर मल्टीपल एजेंसी, एमसीडी भी रिस्पॉन्सिबल है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना, नाइबरिंग स्टेट है। देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर इन्वॉल्व इन दैट। कोई सीवर के लिए है, कोई रेन वाटर के लिए है, तो रेन वाटर। तो कोऑर्डिनेशन का एक समस्या आ रहा है। पॉल्यूशन में इतने सारे एजेंसी है ना, इतने सारे इंस्टीट्यूशन है ना, अलग अलग बोर्ड बना रखा है।
काम नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का भी इशू आ गया, बल्कनाइजेशन जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म आइडियली तो बहुत बढ़िया लगता है कि कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कंपटीशन होगा, लेकिन क्या है कि उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स भी होंगे, कोऑर्डिनेशन का स्पेशली। ठीक है, फ्रीडमैन बोलता है कि मार्केट वाज मोर एफिशिएंट, वो भी फेल कर गया। क्यों? एम्पेरिकल एविडेंस है क्या, है ना? क्या अभी जैसे इसरो है, मेट्रो है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दे आर द पब्लिक सेक्टर। एटॉमिक एनर्जी में अपना इतना अच्छा काम हो रहा है, इसरो का तो एग्जांपल पब्लिक सेक्टर का बेस्ट एग्जांपल माना जाता है इंडिया में, डिस्पाइट बीइंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हाउ दे आर परफॉर्मिंग। तो यानी फ्रेडमैन यहाँ पे एम्पेरिकल एविडेंस, इसके काउंटर के आर्गुमेंट्स भी है। ठीक है, काउंटर आर्गुमेंट्स है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिटीजन को, पीपल को इक्वेट नहीं कर सकते हैं अपन कंज्यूमर की तरह, है ना, कस्टमर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। देयर आर लिमिटेशन ऑफ बिजनेस लाइक अप्रोच। तो चॉइस मैक्सिमाइजेशन इज गुड आइडिया, है ना, बट ये क्या है कि ऑलवेज देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस। ठीक, तो ये हम लोग को एक लिमिटेशंस। तो देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसका हम, है ना, लिमिटेशंस को भी दिखाएंगे लास्ट में, लेकिन रेलेवेंस आना चाहिए। रेलेवेंस क्या है कि डिस्पाइट, है ना, तो इसमें बिजनेस ओरिएंटेशन आने से क्या हो गया, हम देखो मार्केट प्रिंसिपल लगाने से क्या हो गया कि सर्विस क्वालिटी ये सब बढ़िया हो गया, है ना। जैसे अभी क्या है, कई सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है, इसको लिंक करना है, जैसे नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं बैंक का, पीएसयू का। तो ओवरऑल क्या होगा, 1991 के बाद क्या देख रहे हैं अपन, कई सारे प्राइवेट सेक्टर यानी सर्विसेज प्रोवाइड, बैंकिंग सर्विसेज कितना बढ़िया हो गया, है ना। तो अब ये सारा प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं रेलेवेंस है, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी पब्लिक चॉइस अप्रोच रेलेवेंट है, आज भी उसके आइडियाज को अपन क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसका कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, कंपटीशन होगा, और उसके लिए क्या होगा, इफेक्टिव रेगुलेशन आना चाहिए, रेगुलेटरी मशीनरी पे अपन ध्यान दे रहे हैं कि प्रॉपर रेगुलेशन, जैसे टेलीकॉम सेक्टर है ना। तो अभी क्या है कि क्राइसिस क्यों, कंपटीशन नहीं है, वो लिमिटेड प्लेयर्स हो गए, है ना। तो अब लिमिटेड प्लेयर्स होगा तो मोनोपोली टाइप का सिचुएशन आ रहा है, कार्टेल क्रिएट हो रहा है ना, कार्टेलाइजेशन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन कम होने से क्या हो रहा है, अगेन प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो चैलेंजेस है। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है इन फ्यूचर, है ना, जैसे मान लो अर्बन गवर्नेंस, तो वहां पे भी इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म है, कोऑर्डिनेशन का इशू है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यही देखना है कि इवन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज नो, है ना, रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट, बट तो जो एक्सप्लेनेशन पब्लिक चॉइस अप्रोच ने दिया है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे नेक्सस है या बजट मैक्सिमाइजर टेंडेंसी, ये सबको एक्सपोज किया, यानी बिहेवियर को एनालाइज किया, किसके, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन को या सिटीजन के बिहेवियर को, है ना। तो पब्लिक चॉइस अगर हम इसको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं और रिजेक्ट भी कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर, दे हैव बीन सक्सेसफुल, चॉइस मैक्सिमाइजेशन में सक्सेसफुल हुआ, एफिशिएंसी इंप्रूव हो गया, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो गया, तो देयर आर रेलेवेंस ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू कॉम्प्रिहेंसिवली वी हैव टू लुक एट द, आइडिया ऑफ पब्लिक चॉइस। तो पहला इन्फ्लुएंस अपन देखे कि भाई, एक तो पब्लिक चॉइस अप्रोच का इन्फ्लुएंस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट आता है। ठीक है, एनीथिंग टू आस्क बिफोर वी प्रोसीड? चलो आगे चलते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट का डिबेट, इस डिबेट में अपन क्या देख रहे हैं कि जो स्टेट वेलफेयर स्टेट आया उसमें क्या हुआ था, भाई वेलफेयर स्टेट मोनोपोली ये सब आ गया। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि स्टेट जो हम धीरे धीरे क्या हुआ, 1929 के बाद जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, 1950 आते आते स्टेट का मोनोपोली आ गया, स्टेट पावरफुल हो गया, लेवियाथन स्टेट आ गया वेलफेयर स्टेट के अंदर। तो अब ये स्टेट के अंदर मोनोपोली था, तो स्ट्रॉन्ग स्टेट क्या हुआ, इट रिजल्टेड इनटू फेलियर। तो अब ये डिबेट आता है कि जो स्टेट के अंदर वीकनेसेस है ना, स्टेट आल्सो हैज सम पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स एंड देयर आर सम नेगेटिव स्ट्रेंथ्स। तो हम जब स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट में लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे कि स्टेट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेगुलेट। अगर मान लो क्रोनी कैपिटलिज्म आ गया, स्टेट के पास कैपेबिलिटी नहीं है ना, तो हमको क्या करना है, देयर आर पॉजिटिव, निगेटिव को खत्म करना है। निगेटिव के लिए क्या कर रहे हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट आउट, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मार्केट को यूज कर रहे हैं निगेटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट करने, खत्म करने के लिए। और जो स्टेट का जो लेजिटिमेसी है, लोगों का ट्रस्ट कॉन्फिडेंस है, उसको तो अपन अंडरमाइन नहीं कर सकते ना। तो है ना, डिबेट में अपन क्या दिखाएंगे, दोनों चीज दिखाएंगे, जो स्टेट का स्ट्रेंथ है वो मार्केट का वीकनेस है ना। और जो मार्केट का मतलब देयर इज ए क्रॉस लिंकेजेस, जो मार्केट का स्ट्रेंथ है स्टेट को वीकनेस को ओवरकम कर सकता है, और स्टेट का स्ट्रेंथ, इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बाद में आता है। ठीक है, इसमें हम वही देखते हैं कि डिबेट जो है वेलफेयर एरा के टाइम से ही डिबेट शुरू हो गया था, है ना। किनेसियन में क्या होता है, किनेसियन क्या बोलता है, वेलफेयर करो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करो। एडम स्मिथ बोलता था भाई मार्केट पे सब कुछ छोड़ दो, मार्केट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो 1960-70 आते आते देख रहे हैं मार्केट का एक सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा है, स्टेट फेलियर हो गया, है ना, तो स्टेट का रोल बैक हो गया, मार्केट मैकेनिज्म आने लगे हर जगह।
फिर चॉइस मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या होगा, 1980s के अब तक जो डिबेट चल रहा है, तो ये पूरा सर ने बहुत बढ़िया से इसको डायग्राम में बनाया। तो दिस डायग्राम यू कैन ऑलवेज दिस फ्लो चार्ट यू कैन ऑलवेज यूज। कई बार क्या होता है, आप यू डोंट हैव टू यूज द इंटायर डायग्राम, है ना, आप किसी भी एक एस्पेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं, या फिर 1970s के बाद, 90s के बाद, या बिफोर 90s के बाद, तो कंपेरेटिव तरीके से भी इसको यूज करते हैं। तो आइडिया वही है, जो कहानी हम लोग रिपीट कर रहे हैं, सेम कहानी इसमें देखो, 1940s 50, यहाँ पे पहले क्या लेसे फेरे है, 40-50 आते आते क्या हुआ, वेलफेयर एरा हो गया। वेलफेयर एरा क्यों आता है वो हमने डिस्कस कर लिया, क्यों, क्योंकि सब यूथ रिवोल्यूशन आ गया, केनेसियन इकोनॉमिक्स आ गया, है ना, स्टेट का मोनोपोली, पीएसयू का रोल आ गया, तो इसके कारण वेलफेयर एरा आ गया 40-50 में। 60 आते आते ये डिबेट शुरू हो जाता है। क्यों डिबेट शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टेट फेल करने लगा, है ना, स्टेट जब फेल आता है तो पब्लिक चॉइस अप्रोच इमर्ज होता है। पब्लिक चॉइस अप्रोच के कारण यूएसए यूके के अंदर क्या देख रहे हैं, रिफॉर्म मेजर्स, मार्केट बेस्ड रिफॉर्म लिया गया, जिसको थैचरिज्म और रिगनिज्म के फॉर्म में देखते हैं, है ना। 70s 80 एलपीजी का दौर आ गया, तो धीरे सर धीरे क्या, हाँ हाँ प्लीज। सर लेजिस फेयर स्टेट में ये हुआ ना कि द गवर्नमेंट इज नॉट इंटरफेयरिंग इन द मार्केट, राइट? बिल्कुल मतलब बिल्कुल। व्हाटएवर इज हैपनिंग इज लाइक लीव, वो अपने आप पे छोड़ दिया गया है, बिल्कुल मार्केट पे छोड़ दो सब कुछ। कंट्रोल नहीं है, राइट? एंड हाँ एंड हाँ उसके बाद बिल्कुल। फेयर स्टेट आता है। हाँ हाँ फिर हाँ। सेम चीज पीसीए स्टार्ट करता है बोलना कि द रोल ऑफ द स्टेट शुड बी लिमिटेड। तो उस पीरियड में और लेजिस फेयर में क्या बेसिक डिफरेंस है? देखो, हाँ, लेसेज फेरेज में क्या है ना, कंप्लीटली मार्केट ऊपर डिपेंडेंसी है, स्टेट का कोई रोल नहीं है मार्केट में, या गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर। कोई रेगुलेशन नहीं है, फ्रीडम दे रखा है, कंप्लीट फ्रीडम, कि डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे क्या होगा, डिमांड एंड, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जो इनविजिबल हैंड होता है, ऑटोमेटिकली मार्केट क्या करेगा, एडजस्ट करेगा डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म के आधार पे। लेकिन हम जो ये जो 90s का दौर है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट को रेगुलेटर, फैसिलिटेटर, इनेबलर बनाया जा रहा है, यानी रेगुलेशन का काम कौन करेगा, स्टेट करेगा, है ना, फैसिलिटेट करेगा, इनेबल करेगा, बट यहाँ पे हम हर चीज को कॉन्ट्रैक्ट आउट जो कर रहे हैं, तो देर आर सर्टेन स्ट्रेटेजिक डोमेन वेयर वी हैव टू स्टेट विल हैव इट्स प्रेजेंस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टेट का भी रोल इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट होता था, अब आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्यों, स्टेट का जो स्ट्रेंथ है, स्टेट क्या क्या है, कि लेजिटिमेसी है, लोगों का ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, रिसोर्स है, एक्सेस है ना। तो ये मेजर डिफरेंस यहाँ पे बिल्कुल मार्केट पे छोड़ दिया गया, स्टेट अपना सो रहा है, जस्ट है ना, लाइट ऑफ करके अपना सो गया, बस निश्चिंत हो गया, मार्केट अपना कर रहा है। ठीक है, आर यू एबल टू गेट इट? यस सर, यस, थैंक यू। ठीक है। तो फिर 60s में आते आते रिगनिज्म, थेचरिज्म, ये देख लिया, एलपीजी का दौर आ गया। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी बिल्ड होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि यहाँ पे एसिडेंसी ऑफ मार्केट, ऐसा नहीं देयर इज कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। कैन वी से देयर वाज सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, स्टेट को तो सब्स्टिट्यूट करना पॉसिबल नहीं है अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी, है ना। तो वहां पे क्या है कि मार्केट एसिडेंसी, मतलब मार्केट का एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है, मार्केट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट वही था, एक तो है ना फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हो गया। तो दीज आर द फैक्चुअल एस्पेक्ट, है ना, विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, जो फ्रांसिस फुकुयामा ने बोला। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है, दीज आर द कॉन्टेक्स्ट। एक दो पॉइंट याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चारों पॉइंट याद करें, सब याद होना चाहिए, ऐसा जरूरत नहीं। यू शुड बी एबल टू रिकॉल वन और टू कॉन्टेक्स्ट, है ना, कंटेक्चुअल पॉइंट, कि मार्केट क्यों आया। फिर इस फेज को हम लोग जो बोलते हैं कॉर्पोरेट कॉम्पिटिंग स्टेट। लेकिन फिर क्या हुआ, देखो ईस्ट एशियन क्राइसिस आता है 2008 में, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। तो अब ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, अगेन दिस शोज द मार्केट फेलियर, रेगुलेटरी फेलियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रिंग बैक द स्टेट अगेन, द क्या होगा कि भाई वेलफेयर काम करो, क्योंकि ऑक्सफैम रिपोर्ट जैसे मान लो, या ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, तो और एम्पावरमेंट वेलफेयर है, तो कई सारे मॉडल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। जैसे ना अमर्त्य सेन बोलता है कैपेबिलिटी अप्रोच, है ना। तो हम यहाँ इस फेज में क्या देख रहे हैं कि मल्टीपल डायनेमिज्म आया, तो लोग स्टेट के रोल को भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। स्टेट आल्सो हैज सम रोल टू प्ले, वेलफेयर रोल तो हमें गाइड, क्योंकि मार्केट फेल कर गया इकोनॉमिक क्राइसिस में, रेगुलेटरी कैप्चर आ गया। तो कई सारे थिंकर्स, जैसे मान लो थिंकर्स अमर्त्य सेन है, सामिर अमीन है, रॉबिन्सन, दे आल्सो टॉक अबाउट द इफेक्टिव रोल ऑफ द स्टेट। स्टेट शुड बी इफेक्टिव एनफ टू रेगुलेट द मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मार्केट, फिर स्टेट, फिर यहाँ पे मार्केट, फिर फेलियर, मार्केट प्लस स्टेट, है ना। अब जो डिबेट चल रहा है मार्केट प्लस स्टेट, यानी मार्केट के स्ट्रेंथ भी होना चाहिए और स्टेट का भी स्ट्रेंथ होना चाहिए। दिस इज द करंट कंटेक्स्ट। ठीक है। फिर हम लोग ये डिबेट में वही है कि जो पब्लिक चॉइस अप्रोच के इन्फ्लुएंस के अंदर ये डिबेट आया था कि भाई, है ना, मार्केट को डोमिनेंस, मार्केट का डोमिनेंस रोल होगा, मार्केट सब कुछ करेगा, मतलब मार्केट के रोल को ऐसा प्रोपोज किया गया था। तो 1950s में क्या देख रहे थे, वेलफेयर स्टेट भगवान हो गया है ना, सब कुछ कौन करेगा, भगवान। जैसे कोई भी अगर मन में इच्छा आता है तो भगवान को याद करते हैं, है ना। तो सिमिलरली एट दैट पॉइंट ऑफ वेलफेयर स्टेट बिकेम द न्यू गॉड इन 1950s,
कि सारा काम भगवान है ना, स्टेट ही करके दे देगा, तो डेट वाज अगेन द फेलियर। उसके बाद गवर्नेंस भी, आपके कॉन्सेप्ट क्या होगा, गुड एंड बैड का डिबेट आता है, स्टेट अच्छा है बुरा है, मार्केट अच्छा है बुरा है, उस डिबेट के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं आज जो चल रहा है, एक बार एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि गवर्नेंस विदाउट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को खत्म ही कर दो, है ना। लेट, जैसे मान लो कई सारे टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स है, कई सारे रीजन्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का प्रेजेंस ही नहीं है, या फिर एक आइडिया ये रिप्रेजेंट करता है एक फिलोसफी को, है ना। गवर्नेंस विदाउट गवर्नमेंट का बेसिकली कहने का मतलब है एक फिलोसफी रिप्रेजेंट करता है कि भाई गवर्नमेंट के रोल को मिनिमाइज करना है, मिनिमम होना चाहिए गवर्नमेंट का रोल, इंटरफेरेंस, है ना। सिविल सोसाइटी ग्रुप, एनजीओ है, प्राइवेट सेक्टर है, दे शुड ऑल शुड वर्क टुगेदर, कोलैबोरेट, गवर्नमेंट इज जस्ट वन ऑफ द स्टेक होल्डर, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं गवर्नमेंट को बिल्कुल खत्म कर देना है, एक फिलोसफी को रिप्रेजेंट करता है कि देयर शुड बी गवर्नेंस, पीपुल गवर्नेंस मतलब क्या होता है, तो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन इंप्लीमेंटेशन, तो वो कलेक्टिवली करना पड़ेगा ना, थ्रू नेटवर्क, थ्रू द कोलेबोरेशन। और नाइट वॉचमैन स्टेट मतलब, जैसे वॉचमैन क्या करता है, सिर्फ ऑब्जर्व करते रहता है, सीसीटीवी की तरह काम करता है, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, बस जहाँ पे प्रॉब्लम होगा तब वो इंटरवेंशन होगा। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्टेटमेंट कि देयर शुड बी इंटरवेंशन नॉट इंटरफेरेंस, तो नाइट वॉचमैन मतलब मिनिमम रोल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट, वही कॉन्टेक्स्ट, डिसइंटीग्रेशन हो गया, स्टेट फेलियर आ गया, है ना, डोमिनेंस, मार्केट का डोमिनेंस राइज होता है, एलपीजी आएगा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का फेज चल रहा है 90s 80s और 90s में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मार्केट का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, ये प्रैक्टिसेस शुरू हो गया, रिगनिज्म, थेचरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देख ही चुके हैं। फिर 20th सेंचुरी मार्केट बस्ट करता है, फेलियर आता है, पहले तो 97 में आ गया था ईस्ट एशियन क्राइसिस, बाद में 2008 में क्राइसिस आ गया, तो अगेन मार्केट इज नॉट परफेक्ट, है ना। इससे क्या समझ में आया कि मार्केट कैन नॉट डिलीवर, है ना, वो मार्केट का भी लिमिटेशन है, अगर मार्केट शुड नॉट मोनोपोलाइज, है ना, स्टेट को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, है ना, अगर रेगुलेट नहीं किया जाए तो वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है लोगों के लाइफ पे। तो हमको क्या चाहिए कि स्ट्रॉन्ग स्टेट और बट एफिशिएंट स्टेट, मतलब जैसे लिमिटेड स्टेट, स्टेट का रोल क्या है, स्टेट कुछ जगह स्प्रेड कर रहा है और कुछ जगह श्रिंक कर रहा है, मान लो कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कौन करेगा, मार्केट के थ्रू कराओ, लेकिन स्टेट शुड बिकम इफेक्टिव रेगुलेटर, है ना, स्टेट को जो है इनेबलिंग फैसिलिटेटर रोल, यानी स्टेट शुड बी एबल टू इन्फोर्स इट्स रूल ऑफ लॉ, है ना। जैसे आजकल क्या है, क्रोनी कैपिटलिज्म या मल्टीनेशनल कंपनीज का आना क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी को भी डिस्टॉर्ट करवा देता है, लॉबी करके, बिजनेस, जो बिजनेस क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण। तो ये अमर्त्य सेन, समीर अमीन, ये सब क्या बोलता है कि स्टेट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक समय तो जैसे मान लो फ्रांसिस फुकुयामा है ना, तो इसको ये भी बोलते हैं, एक बार तो ये बोल करते हैं कि स्टेट विदर अवे हो जाना चाहिए, है ना, बाद में बोलता है ब्रिंग बैक द स्टेट। तो कई बार होता है ना अपने स्टेटमेंट से रिवर्स होना। तो फ्रांसिस फुकुयामा शोज द ट्रांजिशन ऑफ टाइम, है ना, ही इज बेस्ट एग्जांपल की, एक समय उसका बिलीफ क्या था कि वे स्टेट को विदर अवे कर दो, हटा दो, रोल बैक कर दो स्टेट को, लेकिन बाद में रियलाइज क्या किया कि ब्रिंग द स्टेट बैक इन। क्यों आया, क्योंकि है ना स्टेट का होना जरूरी है, अदरवाइज रिसोर्स है ना कैप्चर हो जाएगा, मोनोपोली आ जाएगा, मार्केट ओवर एक्सप्लॉइट करने लगेगा लोगों को, वेलफेयर नीड्स फुलफिल नहीं होगा। फिर अमर्त्य सेन का जो बैलेंस भी, यानी बुद्धा के आइडिया को यूज करता है भाई, रोल ऑफ स्टेट एंड मार्केट इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, है ना, कहीं जगह स्टेट अच्छा काम कर रहा है, जैसे मान लो स्पेस है या वेलफेयर है, सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो स्टेट को तो मार्केट रिप्लेस कर नहीं सकता है, लेकिन मार्केट जो है गुड्स एंड सर्विसेज इस जगह अच्छा काम कर रहा है। उसी तरह रॉबिन्सन का भी रिमार्क आता है कि जो इनविजिबल हैंड है ना, इंडिविजुअल हैंड शुड रेगुलेट, मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई का है ना, तो रेगुलेट मतलब रेगुलेट करना जरूरी है, विदाउट रेगुलेशन मार्केट कैन नॉट सक्सीड। इसलिए क्या है कि जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी कई सारे रोल स्टेट के रोल को रिकॉग्नाइज करता है, क्यों, जो गुड गवर्न अलग अलग रिपोर्ट निकाला था उसमें क्या बोलता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभी। हाँ हाँ प्लीज। अरे जॉन रॉबिन्सन का जो स्टेटमेंट है इंडिविजुअल हैंड हम्म। का, ये किस कंटेक्स्ट में है, लाइक? हाँ मतलब ये जैसे मान लो ये बोलता है कि एन इंडिविजुअल हैंड, मतलब जो रेगुलेशन वाला जो पार्ट है ना, कि सर रेगुलेशन होना जरूरी इनविजिबल है। हैंड है, हाँ ये मतलब इनविजिबल होना चाहिए, हाँ सर। इनविजुअल हैंड मतलब डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया इंडिविजुअल, ये इनविजिबल है ना। तो अब रेगुलेशन बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट कि रेगुलेशन के बिना सक्सीड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये मतलब ये स्टेट के रोल को नहीं बता रहा, ये मार्केट के रोल को ही रीएम्फसाइज कर रहा है, राइट? हाँ लेकिन कह रहा है कि मार्केट जो है विदाउट इफेक्टिव रेगुलेशन ये सक्सेसफुल नहीं होगा, है ना, मार्केट को सक्सेस कराने के लिए भी किसकी जरूरत है, स्टेट की जरूरत है, रेगुलेटर की जरूरत है। और रेगुलेटर कौन क्रिएट करता है, सेमी गवर्नमेंट टाइप का होता है ना,
बट सर ये स्टेटमेंट थोड़ा सा वो मतलब जिस फ्लो में जिस लाइन में लिखा गया उसका तो ये बताना चाह रहा है ना कि डिमांड एंड सप्लाई शुड रेगुलेट द मार्केट बिकॉज विदाउट डिमांड एंड सप्लाईज रेगुलेशन द मार्केट कैन नॉट सक्सीड. हाँ देयर इज नहीं, नो इसमें complete हाँ, combination. हाँ उसका जो पहला पार्ट है ना, उसके बाद दैट इज करके जो है ना, विदाउट इफेक्टिव रेगुलेशन मार्केट कैन नॉट सक्सीड. तो इसको आप रीइटरेट कैसे करते हैं कि अगर मार्केट को भी सक्सेसफुल होना है तब भी उसको स्टेट का रोल इंपॉर्टेंट है. यानी स्टेट यानी रेगुलेटर के बिना इफेक्टिव रेगुलेशन नहीं होगा तो मार्केट भी फेल करेगा. यानी मार्केट, फॉर द सक्सेस ऑफ मार्केट आल्सो वी नीड द इफेक्टिव स्टेट, है ना, वी नीड द इफेक्टिव रेगुलेशन, है ना. तो यानी एक बैलेंस व्यू ला रहा है ना. पहले क्या होता था, मार्क ये तो मतलब स्टेट पूरा मार्केट के ऊपर छोड़ दो, मार्केट इज परफेक्ट, मार्केट विल डू एवरीथिंग, क्लासिकल इकोनॉमिक्स. लेकिन अब यहाँ पे रेगुलेशन की बात कर रहा है कि मार्केट को सक्सेस पाने के लिए ना, मार्केट कैन नॉट सक्सीड विदाउट द इफेक्टिव रेगुलेशन. दैट इज द आइडिया रॉबिन्सन प्रोपेगेट कर रहे हैं. एक बैलेंस अप्रोच है ना, रिलेटिवली. ठीक है सर, थैंक यू. तो उसके बाद देखते हैं वर्ल्ड बैंक भी बोलता है कि लॉ एंड ऑर्डर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें स्टेट का रोल इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ना, वेलफेयर ऑफ पीपल इंपॉर्टेंट है. तो हम बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी क्या देख रहे हैं, दोनों का स्ट्रेंथ वीकनेस एनालाइज करने के बाद क्या हुआ, वर्सेस के बदले क्या होना चाहिए, बोथ वाला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं. यानी इंस्टीड ऑफ स्टेट वर्सेस मार्केट व्हाट वी शुड गो फॉर, वी शुड गो फॉर बोथ. यानी देयर शुड बी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बोथ स्टेट एंड मार्केट, कोलैबोरेशन होना चाहिए दोनों के बीच. ठीक है. तो स्टेट केम टू बी. अब जैसे पहले क्या था, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटिव स्टेट था 90s में, बाद में जाके वेलफेयर स्टेट भी आ गया, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटिव स्टेट भी आ गया. इसका मतलब क्या है, जैसे कई सारे एग्जांपल जो कंटेम्पररी डेवलपमेंट थे, एंटी ट्रस्ट इशू है यूएसए के अंदर, 5 बिग जो यूएस की कंपनी थी उसमें ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट लॉस होने लगा, आईटी कंपनी में भी ट्रस्ट लॉस हो गया. तो पांचों कंपनी के सीईओ को बुलाया गया था कि भाई, है ना, आप ये जो मैनिपुलेशन चल रहा है या फिर जो डाटा प्राइवेसी है, कई सारे इश्यूज थे, उसको हाईलाइट किया. तो ट्रस्ट का जो इशू है ना, मार्केट पे पूरी तरह आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. ठीक है. तो यानी स्ट्रॉन्ग बट एफिशिएंट स्टेट. ठीक है. तो ये मतलब मैनिफेस्टेशन वही है कि स्ट्रॉन्ग बट एफिशिएंट स्टेट शुड बी एबल टू रेगुलेट द मार्केट. अब देखो ये जो क्वेश्चन आता है कि नेचर ऑफ स्टेट, स्टेट हैज नॉट रिमेन्ड द सेम, है ना. मेलिएबल टर्म क्यों यूज किया गया, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, बाद में जाके वेलफेयर एरा आता है 1950-60s में. तो वेलफेयर एरा में क्या होगा, बढ़ गया स्टेट का रोल. फिर जाके 1960s 70s 80s में क्या देख रहे हैं कि रेगनिज्म, थेचरिज्म या एलपीजी का दौर है, प्राइवेट पब्लिक चॉइस का, मार्केट का रोल, स्टेट का रोल क्या हो गया, स्टेट कम हो गया. फिर 2000 के बाद इफेक्टिव एफिशिएंट स्टेट की बात होने लगी, जब स्टेशन क्राइसिस आया या फिर 2008 का क्राइसिस आया, तो स्टेट के रोल को वापस से रिवाइव किया जा रहा है. ठीक है. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट इन द आंसर्स. ठीक. या या इज इट क्लियर टू अदर्स, है ना. आर यू ऑल एबल टू गेट इट. Yes, sir. Yes, sir. तो वी कैन टेक 2 minutes ब्रेक इफ यू विश. चलो ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अपन मूव करेंगे कहाँ पे, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. ठीक. चलो. देखो अब जो मोस्टली थिंग्स है ना, थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, कहानी क्लियर है. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू इमेजिन द थिंग्स, है ना. क्योंकि अब जो चीजें हैं ना काफी रेपिटेटिव है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव डिस्कस मल्टीपल, है ना, ताकि बार बार इसलिए रिएटरेट कर रहे थे कि पूरी कहानी पिक्चर क्लियर होना चाहिए, कंटेक्स्ट पता है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में आइडिया लग गया. तो अब जो भी कहानी है ना, सब दे ऑल आर रिलेटेड, है ना, थिंग्स विल बी रिपीटेड. तो थोड़ा सा हम स्पीड अप भी करेंगे. ठीक है. देखते हैं मतलब जितना भी हो पाए, और जो बचेगा बाकी है ना देख लेंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी कंप्लीटेड. क्योंकि गुड गवर्नेंस के फीचर्स को भी काफी अपन कर लिए, ग्लोबलाइजेशन के आइडियाज को भी डिस्कस किए हुए हैं. ठीक है. बाकी एनपीएम वाला जो टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट जो हम लोग करने वाले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि है ना, ये बाद में भी आता है, पोस्ट एनपीएम जब बाद में हम लोग देखेंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उसमें देखेंगे किस प्रकार ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है एनपीएम. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, एनपीएम में देखेंगे एनपीएम के बारे में क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. पब्लिक आ गया ना, पब्लिक मतलब जैसे प्राइवेट सेक्टर के आइडियाज को अपन कहाँ ला रहे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ला रहे. जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसको कहाँ लाएंगे, पब्लिक सेक्टर में. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, है ना. तो इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्या था, आखिर ये अप्रोचेज, अलग अलग अप्रोचेज की बात, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इम्पैक्ट क्या हुआ, क्रिटिसिज्म होगा, और हर किसी का रेलेवेंस. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से भी काफी आते हैं. जो रिलेशन है पब्लिक चॉइस अप्रोच और एनपीएम में क्या रिलेशन है, फिर एनपीएम में क्या रिलेशन है, नया क्या है एनपीएम में.
ठीक है, और एनपीएम कैसे डिफरेंट है बिजनेस मैनेजमेंट से, और फिर एनपीएम वेदर इट रिवाइव्स और रिजेक्ट डायकोटोमी, फिर न्यू टेररिज्म और एनपीएम में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी है, फिर बाद में लास्ट में पोस्ट एनपीएम मॉडल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ऑल ऑफ यू शुड बी फोकसिंग। कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आस्क। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट को मैनेज करना है, ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करना है एक नए तरीके से, किस कौन सा वे में, ना कि इंस्टीड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक वे वी विल फोकसिंग ऑन द मैनेजरियल वे। इसको हम लोग न्यू वेव ऑफ, है ना, इसको हम लोग और भी टर्म यूज करते हैं कि दिस इज रिफर्ड एज न्यू वेव ऑफ मैनेजरियलिज्म, है ना, सर स्क्रीन मैनेजरियलिज्म। शेयर नहीं है। अच्छा, स्क्रीन, ओके Screen is not visible. ओके ओके ओके, थैंक यू, है ना, अभी पता, चलो बढ़िया बताया, जस्ट या इज इट विजुअल नो? Yes, sir. ओके, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में हम लोग इसको ना न्यू वेव ऑफ मैनेजरियलिज्म भी बोलते हैं। मैनेजरियलिज्म मतलब मैनेजर विल बी द न्यू, है ना, मैनेजरियलिज्म यहाँ पे क्या है, मैनेजर्स आर न्यू सेवियर्स ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट को मैनेज करने के लिए क्या हो, जैसे पब्लिक सेक्टर है, पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या देख रहे अपन कि पब्लिक सेक्टर में प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि कई सारे जो स्टेट के जो ऑफिसर्स है मोस्टली क्या ब्यूरोक्रेट्स हो रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स यानी दे वर डोमिनेटिंग ऑल द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अब इसके कारण ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स ये सब आ गया, तो हमको क्या लगना है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर क्या लेके आना है, रिफॉर्म लेके आना है। रिफॉर्म लाने से कैसे होगा, ब्रिंग आउट सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इनटू द पब्लिक सेक्टर। तो इसी को नए तरी न्यू वे मतलब क्या हुआ, मैनेजरियल वे, न्यू वेव ऑफ मैनेजरियलिज्म, दीज आर द टर्म्स दैट आर यूज्ड। तो ये इमर्ज कब होगा, 1990s में होगा, किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, पब्लिक चॉइस अप्रोच, एलपीजी, है ना, वाशिंगटन कंसेंसस, ब्रीफली यू हैव ऑलरेडी डिस्कस, रिफॉर्म्स जो है यूएस यूके के अंदर, रिगनिज्म और थैचरिज्म जो है यूके के अंदर। तो ये सारे फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है किसके इमरजेंस में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के इमरजेंस में। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इट विल बी द, यू नो, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, इट इज द सेकंड री इन्वेंशन ऑफ पबैड, है ना। देयर आर डायरेक्ट क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड कि व्हाई वी कंसीडर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज ए सेकंड री इन्वेंशन, क्यों बोलते हैं इसको सेकंड री इन्वेंशन। पहला क्या था, पहला एनपीए, एनपीए के बाद दूसरा जो आता है एनपीएम आता है, क्यों बोलते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट सबसे डोमिनेट पैराडाइम 90s के दौर में बन गया, इस पे फोकस क्या है, जैसे मार्केटाइजेशन पे, यानी प्राइवेटाइजेशन करो, मैनेजरियलिज्म मतलब मैनेजरियल ऑटोनॉमी होना चाहिए। ये एमओयू जो साइन होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, एमओयू साइन हो रहा है, प्राइवेट, अब जो अलग अलग कैटेगराइजेशन किया गया है, याद है इकोनॉमिक्स में या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम लोग जब पढ़ते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज, you know, MOUs which are being signed with the public sector undertaking, परफॉर्मेंस करो, ऑटोनॉमी देंगे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो हमने नवरत्न, महारत्ना, मिनी रत्ना कॉन्सेप्ट लेके आए, तो मैनेजरियल ऑटोनॉमी दे रहे हैं कि भाई हम जो है एक मैक्रो फ्रेमवर्क ही बनाएंगे और यू हैव द फ्रीडम, यू टेक द बिजनेस लाइक डिसीजन। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेट का काम रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन है, दिस इज द, यू नो, मेन आइडिया ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें ना इसका फिलोसफी वही है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, है ना, टू डू बिजनेस। ये करंट गवर्नमेंट का भी ये फिलोसफी चल रहा है कि गवर्नमेंट हैज ए लिमिटेड रोल इन द मार्केट। तो गवर्नमेंट का काम नहीं, सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है ना। तो ये हो गया प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, डिसिप्लिन पे भी होगा। अब देखो एनपीएम जब आता है, एनपीएम का इन्फ्लुएंस डिसिप्लिन पे भी देखेंगे और प्रैक्टिस पे भी देखेंगे। तो इसको हम लोग सेकेंड री इन्वेंशन भी बोलता है, सेकेंड री इन्वेंशन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि न्यू वे ऑफ मैनेजरियलिज्म है, न्यू वे ऑफ। तो हम टर्म जो है ना एनपीएम, इसको कोट, भले कोट 91 में किया गया था क्रिस्टोफर हुड के द्वारा किताब में, लेकिन दिस आइडिया वाज ऑलरेडी पॉपुलर, ये उसको एक समराइज करके कॉन्क्रीटाइज किया गया, है ना। तो रीइन्वेंशन स्कूल किसके, ऑसबॉर्न एंड गेबलर। तो इसको न्यू टेररिज्म से, यानी एनपीएम इज न्यू टेररिज्म, ऐसा इक्वेट कर दिया, किसने कर दिया, पॉलिट ने कर दिया। तो एक मतलब इसको भी देखेंगे, इट इज आल्सो आस्क्ड एज ए क्वेश्चन। फिर हैंड्स ऑन मैनेजमेंट, है ना, कैटल का क्या है, लेट मैनेजर मैनेज, मेक द मैनेजर मैनेज। ठीक है, न्यू टेररिज्म है ना, इसलिए पढ़ते हैं कि क्योंकि इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट, यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या ध्यान, यानी प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन करो, एफिशिएंसी फोकस करो। तो दैट्स व्हाई, यू नो, पॉलिट इक्वेटेड द
concept of NPM with the new terrorism. अब डिटेल में हम लोग फिर देखेंगे उसको. तो these are the important academic development जो है ना, academic जो field है, there's are it has impacted the field of public administration as a discipline also. तो उसलिए important है. ये सारे publication से क्या होगा कि, और बाकी practical development क्या देख रहे हैं, रिगनिज्म, थेचरिज्म है, LPG रिफॉर्म है, मैनेजरियलिज्म है ना, मार्केटाइजेशन है. तो ये सारा पैराडाइम जो न्यू पैराडाइम जो इमर्ज होता है ना, उसके लिए बताया गया, जो 6 पैराडाइम इमर्ज होता है 90s के बाद. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कई सारे थिंकर ने अलग अलग किताब पब्लिश किया, वो हो गया. दूसरा क्या है, रिफॉर्म मेजर्स जो यूएस और यूके के अंदर लिया गया है ना, वो हो गया. वाशिंगटन कंसेंसस, ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है. वर्ल्ड बैंक IMF ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जो कल भी अपन डिस्कस किए थे कि गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेशन होना चाहिए. तो उसके बाद इम्पैक्ट हो गया पब्लिक चॉइस अप्रोच का और एलपीजी का. तो ये क्या है कॉन्टेक्स्ट. तो दिस कॉन्टेक्स्ट है ना, यू शुड कीप दिस पॉइंट्स इन द माइंड. जब भी आंसर लिखना है तो एक दो कॉन्टेक्स्ट को इंट्रोडक्शन में ला सकते हैं, या जब बॉडी को डिस्कस करें बड़े क्वेश्चन में थोड़ा एलोबरेट भी कर सकते हैं. ठीक. तो नियो टेररिज्म पॉलिट ने इसको इक्वेट कर दिया. क्योंकि देखो, एक तो ये है कि भाई आप जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना, प्रोफेशनलिज्म, स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है. इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट को पॉलिट ने डिटेल में एनालाइज किया. वाशिंगटन कंसेंसस डिस्कस कर चुके हैं अपन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. फिर अब जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसको किससे इक्वेट किया गया, पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या कर रहा है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, यानी मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म जो हमने बात किया कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसके बीच में कंपटीशन होना चाहिए. दैट इज द आइडिया दैट गेन्ड फ्रॉम पब्लिक चॉइस अप्रोच. ताकि लोगों को चॉइस कब होगा, अधिक इंस्टीट्यूशन होगा, कंपटीशन होगा, मोनोपोली नहीं होगा. न्यू टेररिज्म क्या कॉन्सेप्ट है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन. इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना, एफिशिएंसी पे फोकस होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई एनपीएम इज कॉम्प्रिहेंसिव पैराडाइम. इसलिए बाद में इसको एक नए पैराडाइम की तरह, देखो पैराडाइम मतलब मोर एंड मोर डोमिनेंट कंक्रीट आइडियाज आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड. ठीक. तो री इन्वेंशन स्कूल, जैसे ऑसबॉर्न एंड गबलर क्या बोलता है, री इन्वेंट, गवर्नमेंट को री इन्वेंट करना है ना. गवर्नमेंट हैज फेल्ड, वी डोंट नीड बिग गवर्नमेंट बट वी नीड बेटर गवर्नेंस. दैट वाज द आइडिया ऑफ री इन्वेंशन स्कूल. क्या बोला, गवर्नेंस क्या होता है, कलेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व करना है सोसाइटी के प्रॉब्लम को. और गवर्नमेंट एक मशीनरी है. जस्ट इमेजिन कि करंट गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट है, यानी स्टेट गवर्नमेंट है, दे आर जस्ट द मशीनरी, वी आर यूजिंग देम फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स या टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल. बट द प्रॉब्लम इज दे आर आउटडेटेड, है ना. तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसे वी हैव टू रीमेक इट. तो अब भी गवर्नमेंट हटा के क्या करना, वी नीड द, है ना, लिस्ट गवर्नमेंट. बेस्ट गवर्नमेंट इज लिस्ट गवर्नमेंट, जो मिनिमम इंटरफेरेंस करे, सिटीजन को इंपावर करे, चॉइस मैक्सिमाइज करे, है ना, डिसेंट्रलाइज कर दे, पार्टिसिपेशन बढ़ा दे. तो ये कॉन्सेप्ट री इन्वेंशन इसको लेके आता है. इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, आउटडेटेड गवर्नमेंट, आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन है, उसको रीस्ट्रक्चर करना है, रीडिजाइन करना है, रीडिफाइन करना है. बिग गवर्नमेंट नहीं चाहिए, बल्कि बेटर गवर्नेंस चाहिए. इंस्टीड ऑफ बिग गवर्नमेंट वी नीड द बेटर गवर्नेंस. ठीक. उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसमें रीइन्वेंशन में यही 90s के दौर में ये जितने भी फीचर्स है, उसके फीचर्स क्या है ना, कैटलिस्टिक ड्रिवन होना चाहिए, स्टेयर करना है ना, रो नहीं करना है. मिशन ड्रिवन, यानी स्टेट शुड बी मिशन ओरिएंटेड, जैसे करंट गवर्नमेंट मिशन मोड पे काम करता है फॉर एग्जांपल. एंटरप्राइजिंग मतलब स्टेट को सिर्फ खर्चा नहीं करना है, बल्कि स्टेट शुड आल्सो बिकम एंटरप्रेन्योर. जैसे स्पेस है, इसरो जो है, इसरो कई सारे एजेंसीज हैं बाहर के मार्केट की तरह भी काम कर रहे हैं. एंटरप्रेन्योर मतलब इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए. कस्टमर क्लाइंट ओरिएंटेड मतलब लोगों की नीड्स के टेलर्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वन साइज फिट ऑल नहीं ला सकते हैं, लोगों का नीड्स फुलफिल होना चाहिए. क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराओ. ठीक. कम्युनिटी ड्रिवन मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ री इन्वेंशन स्कूल, की गवर्नमेंट को री इन्वेंट करना है तो गवर्नमेंट के ये सारे फीचर्स हैं कैटलिस्टिक. तो यू शुड बी एबल टू रिमेंबर मेनी सम ऑफ दीज पॉइंट्स, है ना, ताकि आंसर में आप एथिक्स में भी, जीएस में भी और पब्लिक में भी यूज करते हैं इसको. ठीक है. एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट का आइडिया है, इनोवेशन है, कैटलिस्टिक होना चाहिए. ठीक. डोनाल्ड केटल क्या बोलता है, लेट मैनेजर मैनेज एंड मेक द मैनेजर मैनेज. अब इसका मतलब क्या हुआ, लेट मैनेजर मैनेज, यानी मैनेजर को क्या करना है, मैनेज करने दो. बोलते हैं लेट मी डू इट, या लेट द मैनेजर डू द थिंग्स, यानी लेट मैनेजर मैनेज. एंड मेक द मैनेजर मैनेज मतलब मेक द मैनेजर कैपेबल एनफ टू टेक द डिसीजन, है ना. मैनेजर को ऐसा नहीं सिर्फ छोड़ देना है कि जाओ तुम अपना खुद ही डिसाइड करो, लेट मैनेजर मैनेज, हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा भी नहीं, है ना. हम वहां पे मैनेजर को कैपेबल भी बना रहे हैं. इन जैसे मान लो पीएसयू के अंदर है ना, पीएसयू के अंदर क्या कैटेगराइजेशन देख लिए, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना. इसमें क्या है कि मैनेजर को हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑटोनॉमी भी दे रहे हैं और उसको इनेबल भी कर रहे हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं कि चलो ठीक है, यू हैव द ऑटोनॉमी टू यूज अप टू 2000 करोड़ टू इन्वेस्ट, है ना, यू टेक द डिसीजन. यानी लेट मैनेजर मैनेज एंड मेक द मैनेजर कैपेबल एनफ टू मैनेज.
है ना। तो ये हो गया। फिर पॉलिट क्या बोलता है, न्यू टेररिज्म से इक्वेट किया, क्यों कि स्टैंडर्ड सेटिंग, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी सेट करो, इंसेंटिवाइज करो, जो मोटिवेशन का बात टेलर करेगा, जो अकाउंटेबिलिटी की बात टेलर करता है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की बात है, स्टैंडर्ड सेट करना है। तो ये सारे फीचर्स आपको याद करने हैं, है ना। दीज आर द फीचर्स दैट यू विल बी यूजिंग इन द आंसर। तो जब भी एनपीएम का स्कूल आएगा तो उसमें आप कैटल है, रीइन्वेंशन स्कूल है, न्यू टेररिज्म है, इस आइडिया को यूज करेंगे। दीज आर द 10 मार्कर क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली, यू नो, दीज आर आस्क्ड एज अ क्वेश्चंस इन शॉर्ट आंसर्स। ठीक। फिर डनलेवी है, ये क्या बोलते हैं, प्राइवेट, इसको तीन पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक दिया है। क्या है, प्राइवेटाइजेशन है, मार्केट को है, डिसएग्रीगेशन मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने हैं, है ना, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस, कंपटीशन क्रिएट कर दो, डिसएग्रीगेट कर दो। जैसे ट्रांसपोर्ट, जो पावर सेक्टर में कल हम लोग क्या देख रहे थे, पावर सेक्टर में क्या देखा, ट्रांसमिशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कर दिया गया। पहले क्या मोनोपोली था, एक ही काम, एक ही कंपनी क्या करता है, ट्रांसमिट भी कर रहा है, प्रोड्यूस भी कर रहा है, और है ना डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। अब उसको हमने सेग्रीगेट कर दिया, तो अलग अलग क्या डिसएग्रीगेट कर दिया उसको, अलग अलग प्लेयर्स आ गए उसमें, कंपटीशन क्रिएट हो गया। इंसेंटिवाइज करेंगे ताकि, है ना, इंकरेजमेंट हो, इनेबल करें, फैसिलिटेट करें। तो दैट इज द आइडिया ऑफ एनपीएम, डनलेवी ने बोला है। तो उसी के आधार पे कैरेक्टरिस्टिक हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, मार्केटाइजेशन है, मैनेजरियलिज्म मतलब, है ना, मैनेजरियल ऑटोनॉमी की बात करता है, रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन मतलब रेगुलेट भी करना है और इनेबल भी करना है, फैसिलिटेट करना है। जैसे रेड टेप की बदले क्या बोलते हैं, रेड कारपेट, है ना, मोदी गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, रेड कारपेट। ठीक। तो कैटलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब कैटलाइजर होना चाहिए, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट आउट करो, प्राइवेटाइज कर दो, कस्टमर क्लाइंट ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना, सिर्फ खर्चा नहीं करना है। यूजर चार्ज का कॉन्सेप्ट भी लेके, एंटरप्रेन्योरिंग स्टेट जो कॉन्सेप्ट है, इनोवेशन मतलब आपको इनोवेट करना है। रोल बैक ऑफ द स्टेट, मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए, वी डोंट नीड बिग गवर्नमेंट बट वी नीड बेटर गवर्नेंस। ठीक है। मार्केटाइजेशन वही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। मैनेजरियलिज्म में वही, न्यू टेररिज्म क्यों, कैरेक्टरिस्टिक अपन देख ही चुके, लेट मैनेजर मैनेज मतलब ऑटोनॉमी की बात करता है, मेक मैनेजर मैनेज मतलब इंपावरमेंट की बात करता है। जैसे अपन मिशन कर्मयोगी है, उसको क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग के थ्रू इंपावर, उसको स्किल्ड भी कर रहे हैं, इनेबल भी कर रहे हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, दे लर्न द न्यू टेक्निक्स। ठीक है। एमओयू का भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, 1987 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया। तो रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन में क्या देख रहे हैं, स्टेट क्या करेगा, कंट्रोल, है ना। तो कंट्रोल करने से क्या हो रहा था, वेलफेयर एरा में इनोवेशन नहीं हो पा रहा था, इनहिबिट करता है इनोवेशन को। तो रेगुलेशन मतलब डी कंट्रोल, यानी आपको डी कंट्रोल करना है, स्टेट का मोनोपोली खत्म करना है। फैसिलिटेशन मतलब बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जो रेड कारपेट अपन बोलते हैं, रेड कारपेट होना चाहिए, ना कि रेड टेप होना चाहिए। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे फैसिलिटेशन में। तो दीज आर द आइडियाज। फिर स्टेयर मतलब, जैसे मार्केट क्या होगा, रेगुलेटर, फैसिलिटेटर, कैटलाइजर हो गया। रोअर क्या है, स्टेट जब वेलफेयर स्टेट था तो स्टेट खुद ही सारा काम कर रहा था, सारा गुड्स एंड सर्विसेज स्टेट खुद प्रोवाइड कर रहा है। और इधर क्या है कि जहाँ पे एनपीएम आएगा वहां पे अर्न भी करेगा। हम लोग क्या देखते हैं, कई पार्क्स में, कई म्यूजियम में यूजर चार्जेस का भी कॉन्सेप्ट है ना। तो और पहले क्या था, वेलफेयर में सिर्फ खर्चे की सोचते थे, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल स्टेट भी तरह बिजनेस लाइक अप्रोच भी ला रहे हैं। पावर सेक्टर का एग्जांपल है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जस्टिस, सोशल जस्टिस, सब्सिडी, पब्लिक। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच जैसे अपन देखे थे, जैसे पब्लिक चॉइस अप्रोच ने क्या किया, वेलफेयर को रिजेक्ट किया, है ना, सोशल जस्टिस कॉन्सेप्ट को भी, है ना, मतलब इसको रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पे भी देखते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट को इम्फेसाइज कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन को इम्फेसाइज कर रहा है, मैनेजरियलिज्म को इम्फेसाइज कर रहा है ना। यूजर चार्जेस, हर जगह यूजर चार्ज लगा दिए तो गरीबी में, तो जैसे इंडिया में अगर मान लो यूजर चार्ज हर जगह लगा दिए, है ना, तो अब कोरोना टाइम में कितना क्राइसिस, डिजास्टर आ गया, क्लाइमेट चैलेंज आ गया, या फिर जो गरीब कल्याण योजना नहीं होता तो क्या होता गरीबों का। ठीक है। तो एनपीएम का क्रिटिसिज्म भी हम लोग देखेंगे बाद, सिमिलर पैटर्न जो पब्लिक चॉइस के लिए भी दिया था, काफी चीजें रिपीट होगी। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट को क्या नहीं करना है, गवर्नमेंट को बिजनेस नहीं करना है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, टू डू बिजनेस, है ना, देयर शुड बी रोल बैक ऑफ द स्टेट। तो बिजनेस से हटाओ, मार्केट को फ्रीडम दो, ऑटोनॉमी दो, मैनेजरियल ऑटोनॉमी। व्हाट स्टेट क्या करना है, स्टेट को रेगुलेट करना है और फैसिलिटेट करना है। हाउ इट शुड डू, स्ट्रेटजी क्या सजेस्ट किया, मैनेजरियलिज्म होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल होना चाहिए, एंटरप्राइजिंग वे होना चाहिए। तो डेट वाज द, है ना। तो ये तीन देखो, बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से सर ने इसको कैटेगराइज कर दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट, जो भी हम लोग पढ़े ना सबको यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक। तो इकोनॉमी एफिशिएंसी, विल्सन को भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, विड्रो विल्सन को, इकोनॉमी एफिशिएंसी वापस से इम्फेसिस आ गया। इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं कि भाई इससे फोर्थ, है ना, सिक्स पैराडाइम इमर्ज हो गया, गवर्नेंस पैराडाइम को एनपीएम पैराडाइम भी बोलते हैं अपन। ठीक है। तो ये थियोरेटिकली यानी डिसिप्लिन पे क्या इम्पैक्ट हुआ, एक नया पैराडाइम, ट्रिमेंडस चेंजेस आ गया, रिफॉर्म्स आ गए।
अब कुछ और भी जैसे डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री में कई सारे रिफॉर्म मेजर्स लिए गए थे। यूएसए के अंदर जैसे नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू, ये क्या हुआ कि रिव्यू के अंदर देखते हैं क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। ए गवर्नमेंट व्हिच कॉस्ट लेस एंड वर्क्स मोर, अगर ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस अल्गोरे का स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि वो सरकार, जैसे सरकार एक इंस्ट्रूमेंट है लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बहुत ही खर्चीला सरकार है ना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कर रहा है, वेलफेयर स्टेट का जैसे एग्जांपल हो गया। तो अब क्या है ना, हम उस गवर्नमेंट दैट कॉस्टलेस, मतलब कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक रिजल्ट दे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो परफॉर्मेंस को तभी तो होगा जब इनपुट कम हो आउटपुट मैक्सिमाइज किया जाए, है ना। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लेके आता है परफॉर्मेंस रिव्यू 91 में किया, फिर 30 साल बाद दोबारा से इसको रिव्यू करता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट वहाँ बेस्ड ऑन द एनपीएम आइडिया। यूके के अंदर नेक्स्ट स्टेप एजेंसी है कि अब जो है वहां पे आप कंपटीशन एजेंसिफिकेशन करो, है ना। एजेंसिफिकेशन मतलब एजेंसी विल बी क्रिएटेड, ARC2 भी बोलता है कि एजेंसी क्रिएट करो अलग अलग, है ना, अलग अलग डोमेन में, सेक्टर्स में। फिर यूरोपियन यूनियन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है क्वालिटी सर्विसेज वाला, है ना, क्वालिटी सर्विस इनिशिएटिव कैसे हो, तो कैसे आएगा, जो प्राइवेटाइजेशन, मैनेजरियलिज्म, मार्केटाइजेशन, ये सब करेंगे। फिर सर कनाडा के अंदर, हाँ हाँ प्लीज। सर जो ARC सेकंड एजेंसिफिकेशन के बारे में बोलता है वो क्या है सर? हाँ वही है कि जैसे हम ना पब्लिक सेक्टर मोनोपोली ये सबको खत्म करके आप मैनेजरियलिज्म, ऑटोनॉमी, जैसे पब्लिक सेक्टर में क्या MOU साइन कर रहे हैं ना, एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक तरफ गवर्नमेंट है ना, और गवर्नमेंट का एक एजेंसी एजेंसी है, तो देयर इज आर्म्स लेंथ, जैसे गैप होना चाहिए, सरकार का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ओवर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर किस फील्ड में रिकमेंडेशन है सर हाँ ये ये ARC? मतलब वही मोस्टली जो गुड्स एंड सर्विसेज वाला डोमेन है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे है अपने पास, है ना। तो पहले डायरेक्टली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन अब क्या है, जैसे इसरो है, इसरो में ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमेशा पॉलिटिकल पार्टी जो उसमें इंटरफेयर कर रहा है। सो एजेंसी क्रिएट करना, Sir, so यहाँ पे एजेंसिफिकेशन। agentification that telling us a characteristic of NPM. हाँ दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीएम, ठीक है. ठीक है ना। तो मैनेजरियलिज्म, ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, मैंने न्यू वे ऑफ मैनेजरियलिज्म या ऑटोनॉमी, तो एजेंसिफिकेशन मतलब उसको मैनेजरियल ऑटोनॉमी दिया जाए। जैसे MOU का बात हमने किया ना, MOU का कॉन्सेप्ट PSU में लेके आए थे, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, तो ये सभी काइंड ऑफ है ना प्रैक्टिसेस है उसी का। तो यूके के अंदर इसको बहुत ही एक्सटेंसिवली किया गया कि नेक्स्ट स्टेप एजेंसी, यानी अब गवर्नमेंट को एक आर्म्स लेंथ मेंटेन करना है, गवर्नमेंट और जो एजेंसी उसके बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, इसको और मैनेजरियल ऑटोनॉमी देना है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो उसके बाद हम लोग कनाडा और जितने भी डेवलप कंट्री वहाँ हर जगह क्या देख रहे हैं, परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी पे फोकस है। डेवलपिंग मलेशिया में जैसे पिमांडू काफी पॉपुलर है, काफी है ना, सर हर समय के टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस करते हैं इसका एग्जांपल, काफी है ना कि कैसे सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो गया। तो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, UNDP ने भी इसको रिफर किया है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एनपीएम। उसके बाद फिलीपींस के अंदर सिटीजन फर्स्ट नोट लेटर, ये कॉन्सेप्ट लिंक टू द एनपीएम है, ठीक। इंडिया में देखो कई सारे इनिशिएटिव लिया गया, 91 का रिफॉर्म है, या फिर जो फेरा से फेमा किया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के लिए गए। रेगुलेटरी बॉडीज का क्रिएट करना भी कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि एनपीएम से इन्फ्लुएंस हो गया। MOU का कॉन्सेप्ट है, PSU का कॉर्पोरेटाइजेशन है। फिर फिफ्थ वे कमीशन क्या बोलता है, डाउन साइज करो गवर्नमेंट को, है ना, गवर्नमेंट शुड बी मिनिमल लिस्ट गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी री इन्वेंशन ऑफ गवर्नमेंट है, वर्कफोर्स को 10% रिड्यूस करने का स्पेसिफिक सजेशन उन्होंने दिया था फिफ्थ पे कमीशन। तो दीज आर द एग्जांपल दैट यू कैन quote some of the example, not all, at least 2 3 example you should be always ready, you should be ready with the example। क्रिटिसिज्म वही है कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी रेलिगेट कर दिया, फोकस किस पे है, परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी पे। कौन सा, प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी, मतलब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हो गया, एजेंट हो गया, जो एजेंसी हो गया, यही एजेंसिफिकेशन भी बोलते हैं इसको। यानी गवर्नमेंट एक तरफ है और एक तरफ क्या है, एजेंसी है या इंस्टीट्यूशन है, उसके बीच में क्या है, एक आर्म्स लेंथ मेंटेन्ड है। तो ये प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी के आधार पे है ना, हम लोग का परफॉर्मेंस करोगे, काम करोगे, तो हम तुमको ऑटोनॉमी देंगे, फ्रीडम देंगे, तुमको रिसोर्सेज देंगे, इनेबल करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, दैट इज द आइडिया। यहाँ पे क्या, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, यानी जो लोगों का वेलफेयर ओरिएंटेशन है, वो कहीं ना कहीं, जो आप जब एंटरप्रेन्योरल स्टेट की बात करते हो, यूजर फी की बात करते हो, तो विल इट बी पॉसिबल फॉर ऑल सिटीजन टू पे, है ना। तो वो प्रॉब्लम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हर चीज को नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते, तो दैट विल बी वायलेशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सिटीजन को कस्टमर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, सिटीजन है वेरी डाइवर्स, है ना, हर किसी के पास पैसे नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो कैन नॉट बी मेयरली ट्रीटेड एज ए कस्टमर, दैट इज द आइडिया, वो क्रिटिसिज्म है एनपीएम का। फिर मैनेजरियल क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, करप्शन, मोनोपोली, क्रॉनिक कैपिटलिज्म अभी भी हो रहा है,
यानी एनपीएम आइडिया अगेन दैट इज फेलिंग, देयर आर फेलियर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं पर वन साइज फिट ऑल नहीं हो सकता है। डाउन साइजिंग से क्या हुआ कि इससे क्या होगा, डम साइजिंग बोलते हैं इसको, डाउन साइजिंग हैज बिकम डम्ब साइजिंग। तो अब क्या फोकस क्या होना चाहिए, राइट साइजिंग पे होना चाहिए, कहाँ पे स्टेट को रहना चाहिए, कहाँ पे, इन्हें आंख बंद करके डाउन साइज मत कर दो, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी खत्म कर दिए, एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिए और एनआरकी आ गया, केओस क्रिएट हो गया, तो देयर शुड बी राइट साइजिंग। तो दीज आर द पॉपुलर टर्म्स है ना, डाउन साइजिंग टू डम साइजिंग टू राइट साइजिंग। अगर आपने ये सब डायग्राम फ्लो चार्ट बना दिया, डम साइजिंग है ना, तो ये बढ़िया एकदम रिप्रेजेंटेशन आंसर्स के काफी बढ़िया हो जाता है। ठीक, फिर हम क्रिटिसिज्म, मार्केटाइज, कॉन्ट्रैक्ट आउट, ये सब क्या कर रहे हैं कि भाई इस सिमिलर मतलब कई सारे क्रिटिसिज्म जो पब्लिक चॉइस का था उसको भी अपन रिपीट कर सकते हैं इसमें। ठीक, तो हम जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस रहा, जो भी हमने प्रैक्टिकली देखा कि भाई एनपीएम इंप्लीमेंट करने के बाद इज फेल टू डिलीवर, यहाँ पे भी कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए है ना। तो जैसे सिविल क्राइसिस है, पॉलिटिकल स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जैसे अलग अलग कंट्री का इतने सारे डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो डोंट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गो इनटू द डिटेल्स, इतना डिटेल, कुछ एग्जांपल अगर आपको पता है तो दैट विल बी एनफ टू राइट आंसर। ठीक है, रीइन्वेंशन और आईसीटी का है, एनपीएम जैसे क्रिटिसिज्म ये भी आता है, एनपीएम इज डेड, लॉन्ग लिव डिजिटल एरा गवर्नेंस। यानी एनपीएम का जो क्रिटिसिज्म ऊपर में देखे उसका मतलब क्या हुआ, एनपीएम खत्म हो चुका है, अब किसका दौर आ गया, डिजिटल एरा का दौर आ गया। यानी दिस इज द रियल रियल सेंस में गवर्नमेंट का रीइन्वेंशन कौन कर रहा है, डिजिटल एरा गवर्नेंस में। माईगोव आ गया, प्रगति आ गया, तो कितने सारे रिफॉर्म्स मेजर्स जो इनिशिएट किया गया अंदर डिजिटल एरा गवर्नेंस, अगेन दिस इज द रीइन्वेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। जीएसटी आ गया है ना, तो कई सारे इनिशिएटिव अंदर डिजिटल एरा गवर्नेंस के कारण हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर में जो चेंजेस आया, तो इसलिए एक स्टेटमेंट कई बार आता है। इसका मतलब इस पे अगर कमेंट करने आ गया एनपीएम इज डेड, डू यू थिंक एनपीएम इज डेड, मन में आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू आर्टिकुलेट इन ए मल्टीपल वे कि हमको इसको, यस एनपीएम इज डेड, नो एनपीएम इज नॉट डेड, व्हाई एनपीएम इज डेड, हाउ एनपीएम इज नॉट डेड। these are the type of thought process that should go in your mind. And long live digital era matlab he's a proponent, the thinker who has given this statement is a proponent of digital era governance। आईसीटी के कारण जो गवर्नमेंट का री इन्वेंशन हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, रीडिजाइनिंग हो रहा है गवर्नेंस का, तो दैट इज द डिजिटल एरा गवर्नेंस। तो दोनों का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यहाँ पे डिजिटल डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे है ना। यहाँ एनपीएम में दिखाएंगे कि नहीं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ एनपीएम के प्रिंसिपल से, स्टिल दे आर रेलेवेंट। ठीक है, ऐसे आपको आंसर करने हैं। तो अब यही है कि कॉन्ट्राडिक्शंस भी है, बिजनेस लाइक अप्रोच। तो क्या होगा इसके बाद, कई सारे ऑपरेशनल एक्सपीरियंस से जो कमी आएगा ना, उसी को हम लोग पोस्ट एनपीएम से दूर करते हैं। ठीक, रेलेवेंस एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। रेलेवेंस एप्लीकेशन क्या है भाई, अगर पब्लिक सर्विस स्पिरिट है ना, एसेंशियल तो है, लेकिन आपको प्रोफेशनलिज्म भी चाहिए है ना, आप एफिशिएंसी होना जरूरी है, तो एफिशिएंसी मस्ट भी प्रोफेशनल कैसे बनेगा, एनपीएम के थ्रू बनेगा। ठीक, दूसरा क्या है कि स्टेट फेल, अगर मान लो गुड्स एंड सर्विसेज, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए है ना। अगर लोग डिससेटिस्फाई हो गया, लोगों को है ना नीड्स एंड सर्विसेज क्वालिटी नहीं मिल रहा है, तो लोग तो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा, एंगर होगा। तो यानी अकाउंटेबिलिटी तो डेमोक्रेटिक भी चाहिए और साथ में साथ परफॉर्मेंस भी चाहिए, एफिशिएंसी भी चाहिए है ना। कंटेम्परेरी इसलिए हम लोग है ना राइट साइजिंग बोलते हैं, या है ना गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है। तो लेगेसी ऑफ एनपीएम वही है कि आप जितना भी परफॉर्म अलग अलग सेक्टर में अपन देखते हैं, पीएसयू हो गया, या भी कितने सारे गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लाया पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, जस्ट लाइक नियो टेररिज्म इसको बोलते हैं, या परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने का बात एनपीएम के अंदर जो देखा था उसमें 360 डिग्री अप्रेजल, या कई बार क्वेश्चन एक दो बार सर ने टेस्ट सीरीज में डाला 720 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। 720 डिग्री मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री को दो बार करना है। कैसे दो बार करेंगे, एक बार जैसे मान लो एक बार तुमको एनालाइज किया गया कि ये बंदा जो है ना, उसके कलीग से, उसके सीनियर से, जूनियर से, या जिस क्लाइंट को उसने डील किया, तो 360 डिग्री अप्रेजल करके उस बंदे को अपडेट कर दिया गया, दीज आर योर स्ट्रेंथ, दीज आर योर वीकनेसेस, यू हैव टू वर्क रिमूव दीज वीकनेसेस। फिर क्या होगा, एक महीने 6 महीने बाद या साल भर बाद दोबारा एक 360 डिग्री कराया गया और देखा गया वेदर दीज परफॉर्मेंस हैव इम्प्रूव्ड और नॉट, है ना। अगर इम्प्रूव हुआ तो दैट इज हाउ 360 को 720 तक भी लेके जाया जाता है। ठीक, 360 स्पेशली करेंट गवर्नमेंट इज टू मच फोकसिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक, तो परफॉर्मेंस प्रमोशन का क्राइटेरिया हो गया, या 720 डिग्री इज क्लियर, आर यू एबल टू गेट इट? यस सर। हाँ, इज इट क्लियर टू अदर्स? Yes, sir. Yes, sir.
360 मतलब जो अगर है ना ऑल ऑफ यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, तो यू विल बी है ना इवेल्युएटेड, फीडबैक लिया जाएगा सबसे, ऊपर नीचे बाएं दाएं जितना भी है सारे लोग से, जितने भी इंटरेक्शन है सबसे ओपिनियन लेके तुम है ना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया जाता है या एसेस किया जाता है परफॉर्मेंस को। फिर उसको दोबारा जब करते हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस, एक बार मैंने आपको बता दी ये सारी कमियां हैं आपके स्ट्रेंथ्स हैं, तो कमियों के ऊपर कितना काम किया गया, तो उसको कैसे पता चलेगा जब दोबारा 360 डिग्री किया जाएगा 1 साल बाद 2 साल बाद। तो ये है 720 का। ठीक, एस्पैरो क्या होता है परफॉर्मेंस के लिए, प्रोबेबिलिटी तुम्हारा इंटीग्रिटी और सॉल्व डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है। तो इसमें कई सारे है ना टर्मिनेट किया गया, करंट गवर्नमेंट क्या किया, जो इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेट था, डेड वुड्स बोलते हैं कई बार न्यूज़पेपर में है ना टर्म यूज होता है डेड वुड्स इन ब्यूरोक्रेसी, उसको टर्मिनेट कर दिया गया, परफॉर्मेंस नहीं काम कर रहा है। पुलिस स्कीम, परफॉर्मेंस लिंक इनिशिएटिव, दीज आर बेस्ड ऑन द एनपीएम आइडियाज। ठीक, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी देख रहे हैं आजकल बजटिंग जो है, परफॉर्मेंस बजटिंग, आउटकम बजटिंग, जीएसटी, ऑडिटिंग पे काम हो रहा है। गवर्नमेंट मिनिमम, गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस क्या है, दीज ऑल बेस्ड ऑन द एनपीएम आइडियाज, है ना, जो एनपीएम के मॉडल्स हमने डिस्कस किया। अब यूएस के अंदर भी परफॉर्मेंस रिव्यू 2.0 भी आ गया, है ना, नेक्स्ट स्टेप एजेंसी 2.0 आ गया। ये 2.0 मतलब दोबारा से वो सेम प्रोसेस को किया जा रहा है आफ्टर, है ना, 20-30 ईयर्स। ठीक, उसके डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं कि अपन यहाँ पे क्या नए पैराडाइम का इमरजेंस होता है, एनपीएम को एक नए पैराडाइम से 90s के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इट हैज इमर्ज एज ए न्यू पैराडाइम। थर्ड कॉन्फ्रेंस पे भी एनपीएम के बारे में बताया गया कि भाई एनपीएम अलोंग विथ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनपीएस, जो ट्रायंगल हमने देखा था, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीएम और है ना न्यू पब्लिक सर्विस, ये तीनों फ्यूचर है ना पबेड का। मोहित भट्टाचार्य भी बोलता है एनपीएम जो है इम्पोर्टेंट है ना डेवलपमेंट है, 3 मेजर डेवलपमेंट की बात करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो 1950s के पहले वेबर का ब्यूरोक्रेसी हो गया, फिर उसके बाद एनपीएम मॉडल हो गया, और लास्ट में अभी जो चल रहा है पोस्ट एनपीएम में नेटवर्क गवर्नेंस, है ना, इसको पोस्ट एनपीएम मॉडल भी बोलते हैं। तो दिस इज द मेजर, दीज आर द मेजर 3 मेजर डेवलपमेंट बाय मोहित भट्टाचार्य। एआरसी 2 भी क्या बोलता है, गवर्नमेंट को क्या करना है, रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है ना, एजेंसिफिकेशन, प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी जो अपन देखे, प्रिंसिपल मतलब गवर्नमेंट, एजेंट मतलब जो एजेंसी काम करेगा, तो दिस इज द प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी। तो एजेंसिफिकेशन वही है, कॉन्ट्रैक्ट आउट करो, है ना, एजेंसी क्रिएट करो। फिर रेलेवेंस हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम डिसिप्लिन पे भी इम्पैक्ट देखे और प्रैक्टिस पे भी इम्पैक्ट देखे। दिस इज हाउ एनपीएम। तो अब जैसे मान लो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले क्या होता था एक ही डिपार्टमेंट सब कुछ कर रहा है, अभी पीएम गति शक्ति आ गया। यहाँ पे क्या रहे हैं हम लोग, एक तो कई सारे जो रिलेटेड एजेंसी है डिपार्टमेंट से उसको इंटीग्रेट करें ताकि सीमलेस कोऑर्डिनेशन हो। हैंड्स ऑन मैनेजमेंट मतलब ऑटोनॉमी दो, हैंड्स ऑन मतलब हाथ रखना, मैनेजमेंट को बोला चलो करो मैं पीछे हूँ, डोंट वरी यू टेक द डिसीजन, वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ऑटोनॉमी देने का हैंड्स ऑन मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। ठीक, तो आर्म्स लेंथ में ये कई बार टर्म यूज होता है, आर्म्स लेंथ मतलब मैनेजरियल ऑटोनॉमी का ये कंपोनेंट है, एक तो हैंड्स ऑन मैनेजमेंट हो गया, दूसरा आर्म्स लेंथ में हो गया। तो ये दो टर्म आपको जब मैनेजरियल ऑटोनॉमी जब भी आप डिस्कस करेंगे यू कैन कोट दीज 2 टर्म्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ कुछ है तो याद कर लेना है। डिफरेंस क्या है पब्लिक चॉइस और इसमें, तो बस हमने देखा पब्लिक चॉइस क्या था, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल था, लेकिन एनपीएम में न्यूट्रलिज्म यानी इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल भी है ना। पब्लिक चॉइस क्या इंफेसिस नहीं, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को भी, रिलेशनशिप को भी डिस्कस किया जा रहा है एनपीएम के द्वारा, मोर कम्प्रिहेंसिव देन पब्लिक चॉइस अप्रोच। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल भी है, जैसे मान लो पॉलिट बोलता था परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, है ना, परफॉर्मेंस जो न्यू टेररिज्म सीक्वेट जो किया था कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अकाउंटेबिलिटी और इंसेंटिवाइजेशन, ये सब होना चाहिए। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे मान लो पब्लिक चॉइस अप्रोच में क्या बोला कि भाई मार्केट मैकेनिज्म लेके आओ, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को ऐसा नहीं कि कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया, क्योंकि डेमोक्रेटाइजेशन तो वो भी बोलता था, पब्लिक चॉइस का भी तो पार्ट था ना डेमोक्रेटाइजेशन, यानी लोगों को तो एम्पावर करना ही है। ठीक, विंसेंट ऑस्टेम का भी है। तो लेकिन यहाँ पे एनपीएम में देखते हैं कि थोड़ा सा डेमोक्रेटिक अकाउंटिंग, जो यूजर फीस, एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट, है ना, तो उसके कारण क्या कहीं ना कहीं पीपल को कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट में, तो वो एक क्रिटिसिज्म भी हम लोग देखे ऊपर। ठीक, और उसके बाद देखिए सिमिलर न्यू लिबरल फिलोसफी दोनों इम्फेसाइज, है ना, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू लिबरल फिलोसफी। डिफरेंस क्या है एनपीए और एनपीएम में, कि एनपीएम क्या बोलेगा, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को रेलीगेट कर दे रहा है, ये अपहोल्ड करता है, ये कस्टमर की तरह ट्रीट करेगा एनपीएम, और यहाँ पे सिटीजन की तरह हो गया। और ये मीन्स ओरिएंटेड है, एंड ओरिएंटेड है, यानी एनपीएम में क्या है, एंड गोल होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, री स्ट्रक्चरिंग द गवर्नमेंट, री इन्वेंटिंग द गवर्नमेंट, मीन्स को चेंज करना है। तो एनपीएम टूल्स एंड टेक्निक्स पे फोकस है, इधर वैल्यू और गोल्स पे फोकस है। तो अगेन दिस इज वेरी गुड टेबल, यू कैन ऑल्सो मेक शॉर्ट नोट और इसको याद कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का वैल्यू वैल्यू है, तो पॉलिटिकल साइंस, एनपीएम क्या है, मैनेजमेंट साइंस से इन्फ्लुएंस है।
बिजनेस लाइक अप्रोच से इन्फ्लुएंस है। तो अब इसमें सिंस दे बिलोंग टू 2 डिफरेंट अपोजिट स्कूल्स, है ना, तो बेस सर्व क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एक अदर को, एक मीन्स पे फोकस है, दूसरा एंड पे। तो इसलिए बाद में जो एनपीएस आता है ना, न्यू पब्लिक सर्विस, तो बेसिकली दिस इज द, है ना, न्यू पब्लिक सर्विस को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, न्यू पब्लिक सर्विस इज इक्वल टू एनपीएम प्लस एनपीए, है ना, इस दोनों का आइडियाज को, स्ट्रेंथ को एक साथ मना है। अब इसमें न्यूनेस क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जब बोलते हैं कि न्यूनेस क्या है, न्यूनेस मतलब कि ये बिजनेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस से जैसे क्लासिकल एरा में भी तो बात किए थे, है ना, तो वहां पे थोड़ा डिफरेंस क्या आता है, मैनेजरियलिज्म ऑटोनॉमी की बात करता है ना, कि भाई हाउ एस्पेक्ट को डील करता है लोग, कि आपको कैसे करना है। न्यू टेररिज्म बहुत ही विद इन ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहा है, ये पब्लिक चॉइस अप्रोच के आइडियाज को भी इनकॉर्पोरेट किया, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट को भी इनकॉर्पोरेट करता है, ठीक। तो और इसने पहली बार क्लियर कट तरीके से आर्टिकुलेट क्या किया, न्यूनेस इज, जो टर्म होता है ना मैनेजरियल ऑटोनॉमी के अलावा क्या है, कि गवर्नमेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है। सर ने जो 3 डायग्राम बनाया था कि व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, व्हाट गवर्नमेंट शुड नॉट डू, एंड हाउ गवर्नमेंट शुड डू, दिस इज द न्यूनेस इन द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। बाकी कैरेक्टरिस्टिक ये सब तो अपन कॉन्ट्रैक्ट आउट, प्राइवेटाइजेशन, वो सब तो मेंशन कर ही सकते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हमने ऊपर में देखा। तो अब ये आता है वेदर एनपीएम इज रिवाइवल ऑफ विल्सोनियन डायकोटोमी। ये क्वेश्चन क्योंकि ये ना फोकस इस पे क्या, मैनेजरियलिज्म, प्रोफेशनलिज्म, बिजनेस अप्रोच, थ्रीज, तो ऐसा क्या लग रहा है कि डायकोटोमी को रिवाइव किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब इन डेप्थ एनालिसिस किया गया तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कि मतलब ये कंप्लीटली कॉम्पिटमेंट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को री इन्वेंट करने का बात कर रहा है, यानी ब्यूरोक्रेसी एज ए होल की बात कर रहा है, एज ए गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो स्टेट के रोल को भी तो बात कर रहा है ना, स्टीयरर, रोलर, रेगुलेटर और फैसिलिटेटर कौन बनेगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट, यानी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके ही तो रेगुलेटर या इनेबलर फैसिलिटेटर बनेगा, है ना। तो दैट इज द आइडिया। इसका मतलब क्या है, एनपीएम डजंट, इसका मतलब है कि जब इन डेप्थ में देखते हैं तो एनपीएम इज नॉट रिवाइविंग द डायकोटोमी, ठीक। तो अब क्वेश्चंस कुछ है कि हैज एनपीएम फेल्ड इन प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो अब इसमें क्या है कि स्ट्रेंथ को दिखाना है कि नहीं, इट हैज नॉट फेल्ड, और दूसरी तरफ दिखाना है यस इट हैज फेल्ड, क्योंकि यूजर फीस, चार्जेस, ये सब जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक। उसके एनपीएम इज ब्रॉड, है ना, सेंस स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जैसे अपन बात है ना एलपीजी के बाद जो है सोशलिस्टिक गोल को अचीव करना ज्यादा आसान हो गया थ्रू द मार्केट प्रिंसिपल्स। तो उसी तरह एनपीएम ने क्या किया, जो जो लोगों का एक्सप्रेशन नीड्स है, क्वालिटी सर्विस है, वॉइस मिक्स है, चॉइस मैक्सिमाइजेशन है, एफिशिएंसी है, तो हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों डालेंगे, ठीक है। तो कमेंट में फ्रीडम भी होता है, ठीक। उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है टेलरिज्म, और ये डिफरेंस क्या है टेलरिज्म और न्यू टेलरिज्म में। तो और टेलर क्या, हाँ हाँ प्लीज। सर ये डाइकोटोमी रिवाइवल वाला पॉइंट दोबारा बताना। हाँ देखो, डायकोटोमी इन जनरल क्या लग रहा है कि जो अपियर क्या होता है कि ये बिजनेस लाइक अप्रोच, डायकोटोमी क्या था, पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करना है, दिस वाज द आइडिया। विल्सन का डायकोटोमी ये था। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, प्रोफेशनलिज्म, तो ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे भी डायकोटोमी की बात की जा रही है ना, ऐसा अपियर हो रहा है। लेकिन अब जब इन डेप्थ एनालिसिस किया जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट एज ए होल दिखा जा रहा है, एज ए एंटायर एंटिटी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेट विल हैव टू वर्क टुगेदर एज ए, एंड दे शुड बिकम रेगुलेटर, फैसिलिटेटर। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स को अलग किया जा रहा है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को और ब्यूरोक्रेसी को अलग किया जा रहा है, ऐसा तो बोल नहीं रहा है डायकोटोमी। तो विल्सोनियन डायकोटोमी को रिवाइव नहीं करता है, दिस इज व्हाट द आइडिया। या आर यू एबल टू गेट इट? यस सर। हाँ देखो, डायकोटोमी मतलब क्या, विल्सोनियन डायकोटोमी जब बात करेंगे, इसका मतलब विल्सन क्या बोलता था, पॉलिटिक्स को डायकोटोमी से अलग, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दो। बट एनपीएम इज नॉट टॉकिंग, ये तो क्या बोलता है, स्टेट को री इन्वेंट करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, रीडिजाइन करना है। ऐसा नहीं बोलना है पॉलिटिक्स को रीस्ट्रक्चर करो, एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग करो, ऐसा तो बोल नहीं रहा है। स्टेट हैज ए होल एंटिटी, ये बात कर रहा है, ठीक। इसलिए वहां पे रिवाइवल नहीं हो रहा है, अपियर्स होता है, लेकिन इन डेप्थ जब एनालिसिस करेंगे तब ये पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे रिवाइवल नहीं, ठीक है। बोथ पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को रोल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। या इज इट क्लियर टू अदर्स आल्सो? ये नॉर्मली डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, दिस इज द जस्ट वन एनालिसिस एस्पेक्ट कि इट इज फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। या इज इट क्लियर टू अदर्स? यस सर। ओके ओके। तो अब देखो टेलरिज्म, न्यू टेलरिज्म में क्या है, टेलर क्या बोलता था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, है ना, मैनेजमेंट, और ये तो हम मैनेजरियलिज्म पे ज्यादा फोकस है। सर ये ये कल कंटिन्यू कर सकते हैं अब टेलरिज्म से। बस ये खत्म, ये ना एलपीजी से अपन कल कर लेंगे, जस्ट लास्ट को 1 मिनट जस्ट देखने दो। हाँ एलपीजी कल कर लेंगे, या मंडे को कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्या कल चाहते हो क्लास, कल कर लें? मंडे यस को सर वी करते कैन हैं डू। सर।
Yes, या sir, कर अदर्स? सकते हैं एवरीवन्स वोट शाम इज में। रिक्वायर्ड। यस मंडे ठीक ठीक है, रहेगा सर थोड़ा। अच्छा मंडे सर थोड़ा डाइजेस्ट करने का टाइम भी मिल जाएगा लोगों को। एंड बट ना उसके बाद जो टॉपिक्स है ना बहुत ही आधे घंटे में खत्म होने वाला टॉपिक्स है एलपीजी वाला। ठीक है, तो जस्ट एक टेररिज्म न्यू टेररिज्म यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद फिर एलपीजी शुरू कर देंगे नए टॉपिक्स का अगली क्लास। तो टेररिज्म न्यू टेररिज्म में क्या देख रहे हैं, टेलर क्या बोलता है सॉफ्ट फ्लोर लेवल पे यहाँ पे, लेकिन मैनेजरियलिज्म पे बात हो रही है ना। पॉलिट ने जो यूज किया कि भाई मैनेजरियल ऑटोनॉमी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्या कि जो कैरेक्टरिस्टिक था टेलरिज्म का क्या था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, है ना, साइंटिफिक तरीके से काम करना है। यहाँ मैनेजरियल ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, इधर वर्क एफिशिएंसी की बात करेगा, इधर मैनेजरियल एफिशिएंसी या प्रोफेशनल एफिशिएंसी की बात करेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे वन बेस्ट वे निकाल रहा है, इधर एंटरप्रेन्योर मतलब डूइंग कैसे काम करना, एंटरप्राइजिंग वे में काम करना है। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, यहाँ पे मेजरमेंट अप्रेजल कॉन्ट्रैक्ट आउट करो ये करो, है ना। वहाँ हायर एंड फायर वाला कॉन्सेप्ट, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिमिलर टाइप का हो गया। तो ये सॉफ्ट फ्लोर लेवल है, लेकिन ये मैनेजरियल लेवल। मेजर डिफरेंस अगर आपको ये पता है ना, मैनेजरियल लेवल उसके कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो न्यू टेलरिज्म इसको बोलते हैं क्योंकि टेलर के आइडिया को अलग तरीके से, है ना, उसी आइडियाज को यूज किया गया, एप्लीकेशन ऑफ टेलर प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए न्यू टेलरिज्म बोलते हैं उसको। ठीक है, तो न्यू मतलब होता है नए कॉन्टेक्स्ट में उसी आइडिया को यूज करना। न्यू मतलब न्यू वे तरीके से हम टेलर के आइडिया को वापस से यूज कर रहे थे। मैनेजरियलिज्म में कैसे टेलर के आइडिया को प्रोफेशनलिज्म है, स्टैंडर्डाइजेशन है ना, मैनेजरियल ऑटोनॉमी है, तो उस पर अपन जो बात करते हैं तो दैट इज सिमिलर टू, है ना। नियो मतलब नए तरीके से टेलर का आइडिया को वापस टेलर के फिलोसफी को अप्लाई कर रहे हैं। टेलर का फिलोसफी क्या था, परफॉर्मेंस इवेल्युएटेड, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, तो ऐसा होना चाहिए, इसलिए इसको न्यू टेलरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड। तो देखो अब टारगेट क्या है कि आगे के जितने टॉपिक्स है ना, एलपीजी है और गुड गवर्नेंस है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है और आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा मंडे को। तो व्हाट आई वांट आई विल शेयर यू टुमारो, है ना, टुमारो आई विल शेयर द क्वेश्चन पेपर लास्ट 2 इयर्स के जो टेस्ट सीरीज है, तो उसके, है ना, क्वेश्चन पेपर और शेयर कर देंगे क्वेश्चन आंसर, तो यू कैन प्रैक्टिस इट, ब्रेन स्टॉर्म, सो दैट वंस वी डिस्कस इट एंड यू आर एबल टू रिकॉल इट, यू आर एबल टू रिलेट व्हाट यू आर थिंकिंग, है ना, उसमें क्या गलती हो रहा था, क्यों प्रॉब्लम हो रही थी। तो 2 days, है ना, इट इज यू फॉर यू टू वर्क। ठीक है, आर यू ऑल रेडी टू डू इट? यस एक बार यस रिवाइज सर। अपने, यस हाँ, सर। अपने अपने नोट्स को रिवाइज भी करना है। और दूसरा है ना, क्योंकि अब जो है एप्लीकेशन होगा, जितने भी कंटेंट हम बार बार, इसलिए ये चैप्टर 1 पे कमांड हो गया, तो बाकी चैप्टर्स आपको ना ये बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना, इट विल बी बिट इजियर, क्योंकि पहले चैप्टर में ही सबसे ज्यादा, है ना, क्योंकि पूरा पबेट को अपन देख रहे हैं। ठीक है, ओके, विल मीट ऑन मंडे। या थैंक यू गुड नाइट ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। यस सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट।